Hello and welcome back to Grey Beyond Narratives, where we explore the complex and nuanced issues of our world beyond the black and white narratives. Today I'm your host again, and today we have a very interesting and timely topic to discuss: religion and geopolitics in the Israel Palestine conflict, exploring the Abrahamic prophecies and scriptures. This topic is relevant for anyone who cares about peace, justice, and coexistence in the Middle East and beyond, as well as anyone who is interested in the religious and historical roots of the conflict. In this live show, we will try to answer some of the following questions. What are the religious aspects of the Israel Palestine conflict, and how do they influence the political and historical dimensions? What are the Abrahamic prophecies and scriptures that relate to the conflict, and how do they shape the beliefs and action of the parties involved? How can religion be a source of dialogues and reconciliation rather than division and violence in the conflict? Today, in this discussion, we have Shaji, Said Furqan, and Ali Zaidi. And we also invite our audience to join us in this conversation by sending your comments and questions through the chat feature. And you can also actually join us in this conversation. We will try to address as many of them as possible during the session. So, without further ado, let's begin our discussion. Over to you, Shaji. Thank you very much. As you know, a lot of people are saying, and there's a conversation around this actual narrative. Is this a religious thing? Is this to do with religion? Is this conflict purely based in terms of religion? And then there are others who basically state, yes, religion might have an aspect to do with it as a fault line, but is this a geopolitical issue? So we're going to delve into that. We're going to have a look in terms of what is exactly going on. Is this actually a religious issue, or is there much more to it? Is it a geopolitical issue, or is it a combination of both? So that's the beginning. I'm going to go to Dr. Zedi. I think he pretty much understands the subject. I would just like to introduce Dr. Zedi slightly. He runs his own channel in regards to similar subjects, and he has been doing so for the past 2 to 3 years. We would. He's somebody who's looked deep into this when a lot of people were not analyzing this. We might have disagreements in terms of opinions, but it's interesting to have anyway. So, Zedi, over to you. जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत-बहुत शुक्रिया शाह जी। जैसा कि आपने बताया कि मैं अपने चैनल के हिसाब से ये काफ़ी अरसे से ये कर रहा हूँ, उस टाइम एनालिसिस भी दे रहा था। बहुत सारी बातें मैंने बताई भी हैं लोगों को अपने चैनल के थ्रू कि क्या होने जा रहा है, और बहुत सारे एनालिसिस इसमें सही भी साबित हुए हैं और करेक्ट भी हुए हैं। कुछ गलत भी हुए हैं लाज़मी तौर पर, ऐसा नहीं है कि गलत नहीं हुआ है, गलत भी हुआ है, लेकिन कोशिश अपनी है, इंसानी कोशिश है एनालिसिस करने की। देखिए, रिलीजियस एस्पेक्ट जो है इसका बहुत बड़ा है, जो स्पेक्ट्रम है वो काफ़ी ब्रॉड है। इस पूरी उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट आपको नज़र आ रहा है या वॉर कह लीजिए, एक बड़ा रिलीजियस एस्पेक्ट भी है जो आहिस्ता-आहिस्ता उभर रहा है। मसलन ईरान है, ईरान में जो इस वक़्त रिजीम है वो एक रिलीजियस रिजीम है। वो एक मज़हबी फ़िलॉसफ़ी पर, आइडियोलॉजी पर बिलीव करती है, ठीक है? इसके अलावा जो हमास है वो भी अपना एक रिलीजियस एस्पेक्ट रखती है, अल-कुद्स के हवाले से, यानी जेरूसलम के हवाले से। इसमें जो थर्ड पार्टी है हिज़्बुल्लाह, वो भी एक रखती है, और इसराइल का तो आप जानते ही हैं कि ज़ायनिस्ट स्टेट बुनियादी तौर पर इसराइल जो है वो तो आई ही जुडाइज़्म की बुनियाद पर है कि जुडाइज़्म एक वक़्त आएगा, एक ख़ास तौर पर ये जो जब इनकी मूवमेंट शुरू हुई तकरीबन आज से 150 साल पहले, तो उन्होंने बाइबल की प्रोफेसीज़ को इस्तेमाल किया, टोरा की प्रोफेसीज़ को इस्तेमाल किया और कहा कि एक वक़्त आएगा एट द एंड टाइम्स के इज़राइल बन जाएगा, जो उन्होंने इस्तेमाल भी किया। न्यू जेरूसलम के हवाले से जब बातें की गई टेस्टामेंट्स के हवाले से, तो ये बात उन्होंने कही कि ये आएगी। तो ये एक एस्पेक्ट है
जो थर्ड एस्पेक्ट इसमें दाखिल हो रहा है वो थोड़ा सा लोगों के लिए अनफेमिलियर है मेरे हिसाब से, क्योंकि लोग जानते नहीं हैं वो क्रिश्चियनिटी, ऑर्थोडॉक्स ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का एस्पेक्ट है जिसको समझना बहुत जरूरी है कि आखिर अब हमास ने और ये सारा जो मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है इसके पीछे आखिर रशियन इंटरेस्ट क्यों डेवलप हो रहा है। वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की ही वजह से है। उसमें बहुत सारी फिर हिस्टोरिकल एविडेंसेस आ जाते हैं, रेफरेंसेस आ जाते हैं जो आपके सामने रखूं तो आप लोग इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। ये मुझे उम्मीद है इस बात की कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसमें जुडाइज्म की बात बुनियाद पर बात करें तो जुडाइज्म में ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट था ज्यूस के दरमियान कि हम देखिए हमारा एक डायस्पोरा तो है पूरी दुनिया में लेकिन हमारी कोई स्टेट नहीं है, हमारा कोई मुल्क नहीं है, हम दर बदर मुल्कों में फिर रहे हैं। इंटरनेशनल ज्यू होने के हवाले से उनको ताने दिए जाते थे, जैसे कि अमेरिका में फोर्ड कंपनी के मालिक ने इनको ताना दिया था कि ये इंटरनेशनल ज्यू हैं और ये अपने तौर पर भी सारा सिलसिला चलाते हैं। इसके अलावा आप जर्मनी में भी देख लीजिए, जब हिटलर आया है तो जर्मनी ने भी ज्यूस को ये लेबल देने की कोशिश की थी जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम हो रहे थे। लेकिन उससे पहले ही, हिटलर के आने से पहले ही इसराइल का जो मामला था ना वो तो चल ही रहा था, वो बुनियादी तौर पर ये है। और बेसिकली ये शुरू उस वक्त हुआ जब थियोडोर हडसन ने ये क्लेम किया कि हम जो नाइल और यूफ्रेटिस के दरमियान जो इलाका है उसको हम लेना चाहते हैं क्योंकि बाइबल में हमसे ये प्रॉमिस लैंड के तौर पर कहा गया है। और बहुत सारे लोग फिर जो इनके उसमें हैं, हक में हैं, खास तौर पर कादियानी हजरात जो हैं वो ये इस बात को सामने लाते हैं कि कुरान में भी कुछ ऐसी बात की गई है कि एक प्रॉमिस लैंड के तौर पर ये तुम्हें दिया जाएगा, तुम यहाँ पर रहो और आबाद रहो और ये अपनी स्टेट को आगे बढ़ाओ। तो ये तो चीज है। अच्छा, फिर रेनेसांस की भी एक बात की जाती है, किंग डेविड जेरूशलम की बात की जाती है। मसलन पिछले दिनों जब जेरूशलम को ये कोशिश कर रहा था इसराइल और ये ऐलान किया कि अब इसराइल का कैपिटल जो होगा वो जेरूशलम होगा, तो उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया था वो किंग डेविड जेरूशलम इस्तेमाल किया गया था उनके हिसाब से। तो ये इसमें रिलीजियस एस्पेक्ट तो बहुत ही बड़ा है अगर हम इसराइल के हवाले से बात करें। गो के ये बात कही जाती है कि एक सेक्युलर स्टेट होगी और सारी चीजें होंगी जो कि पहले कहा गया था, लेकिन इसमें अंडरलाइंग फैक्टर यही था कि एक एक स्टेट होनी चाहिए जो कि ज्यूस की हो, जहां ज्यूइश लॉ अप्लाई होता हो और हम इस तरीके से इसको ज्यूस को चलाएं। जो नजरियाती जो करीबन करीबन पाकिस्तान के क़याम से पहले भी हमारे यहाँ एक रेनेसांस की जो बात हो रही थी, जो जिन्ना साहब ने आइडिया पेश किया था, वो काफी हद तक ये आइडियोलॉजीज दोनों एक दूसरे से मिलती भी थी। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है। उसके बाद भी अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में जो अपील पैदा की गई इसराइल की, वो यही की गई, सेटलर्स को भी जो बुलाया गया वो इसी वजह से बुलाया गया कि भाई ये आपकी एक स्टेट बन गई है, अब आप आए। इससे फिर जो बाइबल से जो है ना, इन्होंने बहुत सारे रेफरेंसेस दिए। अच्छा, इसमें एक और भी ये चीज है, जो मिसाया का जो कॉन्सेप्ट है वो भी दाखिल हो जाता है। बहुत सारे ज्यूइश जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि इसराइल का बनना ही इस बात की बहुत बड़ी दलील है कि थर्ड टेम्पल बनेगा और मिसाया आएगा, उसका इफ्तिताह करेगा। थर्ड टेम्पल की आपको मैं एक बात बता दूं, यकीनी तौर पर आप लोग सारे इस बात को जानते हैं कि ज्यूज ये कहते हैं कि जो हमारा फर्स्ट टेम्पल था वो किंग सोलोमन ने बनाया था, वो गिरा दिया गया जो है नबूकदनेस्सर के जमाने में, यानी बख्त नसर के जमाने में। फिर उसको दोबारा तामीर किया, हजरत उजैर के जमाने में वो तामीर हुआ। और फिर दूसरी दफा उसको जब गिराया गया तो वो टाइटस ने जब उसको 1770 एडी में जब हमला किया है तो गिराया गया था उसको। और अब वो गिरा हुआ है और एक वक्त आएगा कि हम थर्ड टेम्पल दोबारा बनाएंगे इधर इसी जगह जहां पर इस वक्त मस्जिद अक्सा वाक़ है। तो ये चीजें, ये रिलीजियस एस्पेक्ट तो है। अब बात की जाती है मुस्लिम एस्पेक्ट की। मुस्लिम एस्पेक्ट तो मेरा ख्याल है उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही वाइटल है जितना कि ज्यूस की हिसाब से बात की जाती है, क्योंकि हम मस्जिद अक्सा को अपना किबला अव्वल मानते हैं।
सबसे बड़ी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज़ें स्टार्ट की थी वो सबसे पहले यही होता था कि वो किबला अव्वल की तरफ मुँह करके मुसलमान नमाज़ पढ़ते थे। फिर जब बाद में किबला चेंज हुआ मदीना में तो इस पर यहूदियों को बहुत एतराज़ हुआ था, उन्होंने तो बहुत शोर मचाया था, लेकिन बहरहाल ये सिलसिले तारीख़ का हिस्सा है, हमारे यहाँ हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि जो सूरह बनी इसराइल में जो पहली इब्तदाई आयत आती हैं, उसमें अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में ये बात कही है कि पाक है वो ज़ात जो एक रात में मस्जिद हराम से ले गया अपने बंदे को मस्जिद अक्सा की तरफ, ये बात कही गई। तो इसमें खास मस्जिद अक्सा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर। तो हमारे लिए ये एक बहुत ब्रदर, बड़ी मैं अहम। आपको क्वेश्चन कर सकता हूँ यहाँ पे? जी, बोलिए। देखें, आप सूरह इसरा की बात कर रहे हैं। सूरह इसरा में तो दो दफ़ा इनको जहाँ तक जुडाइज़्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, इनको बोला भी गया है कि यू हैव टू बेसिकली यू आर गोइंग टू बी डन ट्वाइस एंड देयर आफ्टर उसके बाद यू विल बी इन दिस रेट। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि जब मस्जिदुल अक्सा की हम बात करते हैं, ऑब्वियसली दिस इज़ आल्सो द सेम सूरह जहाँ पे हम बात करते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम मेराज के ऊपर गए थे। एम आई करेक्ट? ये वही वाली सूरह की बात कर रहा हूँ, सूरह जी, इसरा। जी, जी। हाँ, तो उसके अंदर मस्जिदुल अक्सा की बजाय वहाँ पे तो दैट मॉस्क मस्जिदुल हाँ, हराम लिखा फ्रॉम हाँ, वन ठीक है, प्लेस सही टू द है। अदर। हाँ, तो टू अदर। मस्जिद अक्सा नाम से नहीं है वो। हाँ, हाँ, इफ ठीक है, आई सही। हाँ, सही है, यू नीड ऑब्वियसली। टू। हाँ, तो जी, ऊपर से बिल्कुल सही बात है क्योंकि आपकी। ये हाँ, ये रेलेवेंट इसलिए मैं आपको टोक नहीं रहा था क्योंकि आई थिंक एट सम स्टेज यहाँ पे एलैबोरेशन होगी कि मस्जिदुल अक्सा किस वक्त तामीर हुई, उसका क्या बैकग्राउंड था, किसने किया। तो जस्ट टू हुँ, कीप इन कॉन्टेक्स्ट, दैट्स व्हाई इट वाज इम्पोर्टेंट। हाँ, आप कैरी ऑन। हाँ, ठीक है, सही है, आपकी बात सही है और इसमें इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल हुआ है और ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, अक्सा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ी मुबारक मस्जिद का ज़िक्र आया है, तो ये बात ठीक है आपकी। और ये लोग कोट भी करते हैं और फिर वो इख्तलाफ भी पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम अहादीस की मदद से लें, जो कि होता है हमारे यहाँ, हमारे एक कॉमन ट्रेडिशन है कि हम देखते हैं उसको और अहादीस से भी देखते हैं कि हदीस में क्या बात आई है और फिर दोनों को हमारे यहाँ वो लिया जाता है। ये हमारे यहाँ एक कॉमन रूल है कि अगर हमें कोई चीज़, कोई दलील हदीस से मिल सके तो हम ज़रूर उठाते हैं वरना बिल्कुल। और जो मैं है आपकी हमारे बात यहाँ पे खत्म हो गई। 100% एग्री करता हूँ कि दिस इज टॉकिंग अबाउट द सेम प्लेस। तो इट वाज हुँ, जस्ट फॉर क्लैरिटी कि अभी यहाँ पे हाँ, कोई ठीक है। आ जाए चलो या हम लेटर डेट पे हमें कोई ये बात हाँ, क्वेश्चन करे, तो वी हाँ, शुड बी वेरी क्लियर विद आवर हाँ, वर्ड्स। हाँ और तो फिर हम लेकिन आगे आप बढ़ते हैं इसके अलावा। एग्जैक्टली यू एब्सोल्युटली राइट। आप हाँ, चलें। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर इससे जो है फिर वो जो मिराज का वाक़या आया और वहाँ पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया की इमामत की और ये सारे वाक़यात हमें हदीस में मिलते हैं, कुरान मजीद में इनका ज़िक्र नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ है, ठीक है ना? तो ये वाली बात है और फिर पूरे एक हिस्ट्री बनती है सूरह बनी इसराइल या सूरह इसरा आप इसे कह लीजिए। इसमें पूरे फिर ज्यूज़ की जो हिस्ट्री है, वो बताई जाती है कि इसके हिसाब से क्या क्या हुआ था, ज्यूज़ ने क्या किया था और एक कुछ डायर प्रेडिक्शंस हैं इसमें इस सूरा में, जो मैं अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि अल्लाह ताला ने चैलेंज दिया है यहूदियों को कि अगर तुम तीसरी दफ़ा भी फ़साद करोगे, जो कि अभी आप नज़र आ रहा है, तो हम तुम्हारा वही हशर करेंगे, जैसा कि हम पहले 2 दफ़ा कर चुके हैं तुम्हारे साथ। तो ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर याजूज और माजूज की भी बात आती है और दीगर दूसरे मरहले भी हैं, जो कि हमें आते होता हुआ आगे नज़र आएगा। लेकिन अगर हम फ़ोकस रखें अभी और सिर्फ़ इसी बात पर बुनियाद करें बनी इसराइल की, तो ये बनी इसराइल की एक हिस्ट्री रही है यानी ज्यूज़ की एक हिस्ट्री रही कि हमारे यहाँ ये बातें मुसलमानों को भी पता चली कुरान के ज़रिए कि क्या हुआ था और किस तरीके से ये हुआ था। क्योंकि मुसलमान जब वहाँ अरब में इस्लाम आया है तो अरबों के पास एक बात थी कि इतने हिस्टोरिकल जो टेक्स्ट थे वो मौजूद नहीं थे। ये तो कुरान मजीद के आने के बाद जब अरबों ने पूरी उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में जब एक स्टेट नाफ़िज़ हुई है और स्टेट बनी है वहाँ पर और फिर उन्होंने बाद में निकल के और जगहों को फ़तह किया, तो फिर वो हिस्टोरिकल टेक्स्ट उनको मिले हैं और सारी बातें
फिर बाद में अरबों को पता चली हैं कि ऐसे-ऐसे भी हुआ था। तो ये एक चीज़ हमें मिलती है यहाँ पर। और मेरा ख़्याल है हमारे काफ़ी लोग जो हैं ख़ास तौर पर इस्लाम से जो बिलॉन्ग करते हैं मुस्लिम्स, उनको अब यूट्यूब की मदद से तो काफ़ी हिस्ट्री से वाक़फ़ियत हो चुकी है, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ बहुत सारी मौजूद हैं, जो कि जिन्होंने ज्यूज़ की हिस्ट्री को और मुसलमानों की हिस्ट्री को यहाँ पे बताया है। फिर बाद में हम ये भी देखते हैं कि जब यरूशलेम फ़तह किया है मुसलमानों ने, तो हज़रत उमर फ़ारूक आए हैं, उन्होंने एक ट्रीटी साइन किया था क्रिश्चियंस के साथ, क्योंकि उस ज़माने में एक बिज़ेंटीन एम्पायर हुआ करती थी, जिसके कब्ज़े में ये था। जो रूल किया करती थी यरूशलेम को, उन्होंने ये पैक्ट करवाया था हज़रत उमर फारूक से कि आप जो हैं यहाँ पर यहूदियों को आने की इजाज़त तो देंगे, लेकिन बसने की इजाज़त नहीं देंगे। ये एक पैक्ट किया गया था इस ईसाइयों के साथ। ये ईसाई जो थे उस ज़माने में, बिज़ेंटीन एम्पायर जो हुआ करती थी, उनके साथ ये पैक्ट हुआ था कि यहाँ पर आपको नहीं हो, और ये काफ़ी अरसे तक चलता Well, रहा अंटिल एंड अनलेस। Dr. Zeddy, we have to be very clear that was about the people who were basically Romans in their descent. या जो वहाँ पे रह नहीं रहे थे, जो लोकल ज्यूज थे, they were not basically depopulated. और दूसरी बात यह है कि ये हज़रत उमर का जो दौर था, उसके अंदर जब ये पैक्ट हुआ था, हज़रत उमर लुक्ड आफ्टर द लोकल पॉपुलस। वहाँ से उन्हें हाँ, किसी को निकाला नहीं था। सो वी नीड टू बी नहीं, नहीं वेरी निकाला नहीं। हाँ, नहीं, हाँ, हाँ। वो यही वाली और बात दिस थी। फैक्ट हाँ, ये इस फैक्ट की बहुत लोग बात करते हैं, जितनी मैंने रिसर्च की है, दैट वाज नॉट अगेंस्ट द ज्यूज और द क्रिश्चियंस नो, और नो, एनीवन नो, नो, पर से। हाँ, That was हाँ, basically against the people who were from the Byzantine Empire, because they would come and they would falter. That was not a religious based thing. लेकिन हाँ, उन्होंने ये कहा था कि जिनकी religious affiliation है, the lands and the monuments are open to them. यहाँ तक कि जब हजरत उमर ने उस जगह को फतेह किया था, उस टाइम के जी, ऊपर जो क्रिश्चियंस थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो हुँ, उन्होंने उनको बकायदा पूछा था कि why don't you pray, as you are the leader now, why don't you pray in our religious place at this time, the holiest of the holies. And he basically refused, और उन्होंने रीजन ये दिया था कि I am very obligated, और मुझे I am very much uh, uh, like honored in a way कि you've asked me to do that. लेकिन अगर आज मैंने ये किया, तो कल दूसरे लोग ये बोलेंगे कि आप क्या हमारे खलीफा, हमारे अमीर उल मोमिनीन ने यहाँ पे प्रे किया है, या रिसाइट किया है, नमाज पढ़ी है, तो ये हमारे लिए जगह बनती है, दिस विल बी एन इशू फॉर यू। तो वी नीड हाँ, टू रिमेंबर दैट एंड कीप दैट इन हाँ, कॉन्टेक्स्ट एज़ वेल। तो आगे बिल्कुल सही आप कह बात कीजिए। जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, इसमें मेरा भी आपके साथ बिल्कुल एग्रीमेंट है, टोटली एग्री करता हूँ। देखिए, बात ये है यहाँ पर कि हज़रत उमर फारूक जब आए हैं, तो वहाँ पर मैंने जैसे कि बताया, जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी जिसको हम कहते हैं ना आज, ये वो बेसिकली जो बिज़ेंटीन चर्च था, ये इससे बिलॉन्ग करता था। ये थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। उस टाइम ज्यूज़ यहाँ पर इतने आबाद नहीं थे। वो इसकी वजह ये है कि जब टाइटस ने जो है इनको निकल जाने का हुक्म दिया था, जब इन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई थी 17th सेंचुरी में और 70 एडी में, तो फिर जो है क्या कहते हैं, ये सारा मसला क्रिएट हुआ था, और फिर यही यहाँ लोग यहाँ से निकलकर जो है ना, इनका मुख्तलिफ दुनिया के इलाकों में ये फैल गए थे। कोई किधर चला गया, कोई अरब आ गया, कोई क्या कहते हैं अफगानिस्तान की तरफ चला गया है, कोई किधर चला गया है, तो किधर कोई किधर चला गया। तो ये वाली बात जरा समझने की जरूरत है। इधर ज्यादातर मेजॉरिटी जो थी वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की हुआ करती थी। यहाँ पर एक बहुत अहम बात है, समझने की जरूरत है वो, और यही चीज जो है ना, बुनियादी तौर पर आगे जाकर ये जो मैं आज बात कर रहा हूँ रशियन इंटरेस्ट की, इससे ये लिंक्ड हो जाती है। जो बिज़ेंटीन एम्पायर थी, आखिर क्या वजह है कि रशियंस जो हैं वो बहुत सारे जो बिज़ेंटीन साइंस हुआ करते थे, उनको अब इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्हीं को जो है क्या कहते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाना चाहते हैं। ये इसका जवाब हमें उस वक़्त मिलेगा जब हम इसकी तरफ आएँगे। खैर बहरहाल, तो ये चीज़ हमें ज़रा-सा थोड़ा-सा पता चल जाता है यहाँ पर कि ये यहाँ तक है। फिर जो बाद में है, मुसलमानों ने यहाँ पर और बनाई, मस्जिदें बनाई, वलीद बिन अब्दुल मलिक के ज़माने में। ये जो आपको गोल्डन डूम नज़र आता है, ये मस्जिद बनाई गई, हत्ता कि मस्जिद अक्सा इसके सामने ही वाक़ है।
जो ज्यादातर मस्जिद अक्सा का मॉडल हमारे देश का बिफोर है। वी मूव ऑन टू दैट, सबसे पहले जहाँ पे अब मस्जिद अल अक्सा बनी हुई है, वी हैव टू, ये यहाँ पे सबसे पहली कंस्ट्रक्शन मुसलमानों ने किसने की? हाँ, इसमें ये मैं आपको बता दूं कि ये अमूमी तौर पर जो ज्यूज ये कहते हैं कि जी ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में बनाई गई है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। हमारे हिसाब से हम एक हदीस पेश करते हैं जिसमें ये बात कही जाती है कि जो सबसे पहली मस्जिद बनाई गई वो तो मस्जिद बैतुल हराम बनाई गई। उसके 40 साल के बाद एक दूसरी मस्जिद बनाई गई थी जो मस्जिद अक्सा है। अब हम इस बात को जानते हैं कि मस्जिद जो जो हराम है, मस्जिदुल हराम जो है, उसकी बुनियादें हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी थी, जिसको बाद में रीडिस्कवर किया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाया था। ठीक है? तो अगर हम 40 साल का अरसा ले लें तो मस्जिदुल बैतुल हराम को जो बनाया गया, मस्जिदुल हराम को, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 40 साल के बाद वो उसकी बुनियादें रखी जा चुकी थी। तो इस बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको बनाया है। और अगर बनाया भी हो, बिलफर्ज ये फर्ज भी कर लिया जाए, तो हम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद की रूह से मुसलमान मानते हैं। उनको हम ये ज्यू नहीं मानते। जुडाइज्म हमारे नजदीक बात की पैदावार है। ये बुनियादी तौर पर वो रिलीजन नहीं है जो कि क्या कहते हैं, जिसके दाई जो हुआ करते थे वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुआ करते थे। ये एक बुनियादी फर्क है मुसलमान जो करते हैं। ठीक है ना? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हम अल्लाह के नबी मानते हैं और ये बात हम कहते हैं कि वो मुसलमान थे। तो इसलिए इस पर हमारा एब्सोल्युटली हक करेक्ट, बनता है। लेकिन रनर, ये बात तो आपकी सही है कि जुडाइज्म के टाइम के अंदर हु वर द कंस्ट्रक्टर्स एंड हु कंस्ट्रक्टेड दिस, बट मुसलमानों के अंदर हजरत उमर के दौर के अंदर तो यहाँ पे मुसलमानों की तरफ से डायरेक्टली कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। So when हाँ, was the ठीक है। first time Muslims constructed something here is a very imperative point. हाँ, हाँ, ठीक है। लेकिन आपको ये बात बता दूं कि मस्जिद अक्सा के सामने मस्जिद तामीर की गई थी। हाँ, ये जो मस्जिद वलीद अल-अक्सा बिन के अब्दुल सामने मलिक। की गई थी, लेकिन इस लोकेशन के ऊपर सबसे पहले उमैय्यद दौर के अंदर कंस्ट्रक्शन हुई है ना, इफ जी, आई एम जी, नॉट रॉन्ग। जी, और जी, जी। यहाँ पे सबसे पहले छोटा-सा एक कमरा हज़रत अमीर मुआविया रज़ी ताला अन्हु के टाइम के ऊपर बना। हाँ, ठीक है। लेकिन ये तो ख़ैर ये इसमें डिस्कशन हो सकता है कि कब, लेकिन ये जो गोल्डन मस्जिद आप देखते हैं ना, गोल्डन डोम, ये मस्जिद अक्सा हमारी नज़र में नहीं है। सही है ये ना? ये मस्जिद उमर इसको है ना, देयर इज़ अ पर्टिकुलर हाँ। नेम फॉर दैट इज़ रिफर्ड हाँ, टू एज़ हाँ, नहीं, नहीं, मस्जिद उमर। मस्जिद वलीद कहलाती है, मस्जिद वलीद है। ये वलीद बिन अब्दुल मलिक ने बनवाई थी। वलीद बिन अब्दुल मलिक का दौर बहुत बाद की बात है। सही है ना? ये वो दौर नहीं है जो कि क्या कहते हैं उस ज़माने में जो हज़रत उमर के बहुत बाद में वलीद जो है वो पैदा हुआ है। तकरीबन मेरा ख़्याल है 40 से 50 साल का अरसा शायद होगा बीच में, इन दोनों के दरमियान, या शायद ज़्यादा ही हो। ठीक है ना? तो ये वाली बात है। इसको इस तरीके से करेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये बात जो है ना समझ आ जाती है कि भाई इस हिसाब से ये जो मामलात हैं ऐसे नहीं हैं, जैसा कि पोर्ट्रे किए जाते हैं अमूमी तौर पर मीडिया में। कि मीडिया जो है वो इस तरह से पोर्ट्रे करता है कि मुसलमान शायद ये कोई बिलीव करते हैं और ज़्यादातर ये दिखाया जाता है अमूमी तौर पर हमारे यहाँ कि जी ये मस्जिद अक्सा, ऐसा नहीं है। मस्जिद अक्सा जो है वो डिफरेंट है, ये मस्जिद वलीद है। ये बहुत बाद में वजूद में आई। बहरहाल, तो ये सिलसिला है। फिर बाद में सलाउद्दीन अय्यूबी के ज़माने में, सुल्तान के ज़माने में, और वो सारी एक आपको रेस नज़र आती है कि किस तरीके से हुआ। अब आ जाएँ, बात करते हैं थर्ड फैक्टर की तरफ, जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है, जो कि जिसका क्लेम अपनी जगह मौजूद है, जिसकी वजह से जो क्रूसेड्स शुरू हुए। फर्स्ट क्रूसेड हुआ, सेकंड क्रूसेड हुआ, फिर बाद में क्रूसेड्स की लाइन लग गई थी कि बहुत ज़्यादा क्रूसेड्स किए गए थे। ठीक है ना? वो ये कहते थे बुनियादी तौर पर कि देखिए भाई सैप्लिका तो यहाँ पर मौजूद है, ये तो जाए पैदाइश है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो जेरूसलम है। ठीक है ना? वो इसको कहते थे नासरिया वगैरह जो कहलाता है। नाज़रेत जो है वो एक कस्बा है, छोटा-सा, जो कि बाहर है जेरूसलम के, और वहाँ जो है उनकी पैदाइश हुई थी और फिर ये कहा जाता है कि जी वो वहाँ पर जो है उनको स्लेब पर चढ़ाया गया था। तो ये अपनी तरफ ये बात की जाती है उनकी तरफ से और सारी बातें हैं। अच्छा, फिर वो ये भी था कि वहाँ पर ये हुआ था कि जो असली स्लेब थी ना, जो क्रॉस था, उसको वहाँ पर एक ऐसा कहा ये जाता है कि उसका एक हिस्सा जो है ना वहाँ पर एक चर्च के नीचे दबा दिया गया था।
जो बाद में ये जो कॉन्स्टेंटीन की जो मदर थी उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो सबसे बड़ा जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटिनोपल कहा गया इस्तांबुल को, उसकी जो माँ थी ना उसने उसको निकाला था और डिस्कवर किया था, और ये लोग फिर आया सूफिया वगैरह ले गए थे। और ये बिजेंटीन चर्च जो था, जब ये क्या कहते हैं रोमन हिसाब किताब चल रहा था, पहले तो पेगनिज्म था रोमन एम्पायर में, लेकिन जब जब ये शिफ्ट हुआ है, जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर बनी है और वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो है वो ऑलमोस्ट फॉल हो गया था, तो वहां पर जो है ना फिर ये कॉन्स्टेंटीन द ग्रेट ने जो है 4th सेंचुरी में, तकरीबन 331 एडी में शायद, ये जो है क्रिश्चियनिटी कबूल कर ली थी और वो क्रिश्चियन हो गया था। और फिर बाद में ये आया सूफिया और ये वगैरह, इनके जो है चर्चेस वगैरह बनाए गए थे, तो ये लोग वहां ले गए थे। कहा जाता है कि ये जो क्रॉस था ये लोग ले गए थे, और इस वजह से इनकी जो इम्पोर्टेंस है इनके दिलों में ये बहुत ज्यादा है, जितना ज्यादा जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के लोग हैं, जिसको कॉमनली ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी चर्च कहा जाता है, उनकी यरूशलेम से जितनी वाबस्तगी है शायद ही किसी की हो। ठीक है ना, तो ये पॉइंट है। लेकिन अच्छा, डॉक्टर ज़की, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को देखें, दे डोंट सपोर्ट द करंट स्टेट ऑफ इजराइल, इट्स द इवेंजेलिकल्स हू डू। अगर आप बिल्कुल। ऑर्थोडॉक्स को देखें तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के साथ तो जब से ये स्टेट बनी है काफ़ी जुल्म हुआ है। आई थिंक हाँ, ओवर 84 से 90,000 का एस्टिमेट है कि since the time of conception of the modern state of Israel, round about जी। these many people have been displaced and they've had to become refugees around the globe. और उनकी मेरा ख्याल है कि चौथी पांचवी जनरेशन अब चल रही है। और अगर आप बिल्कुल। ऑर्थोडॉक्सी को भी देखें, अभी रिसेंट जो उनके आए हैं रशियन ऑर्थोडॉक्स वाले भी हैं, और जो आपके कैथलिक्स एज वेल एज द ऑर्थोडॉक्स जो बचे हैं स्पेन में और इटली में, इवन हाँ, उनकी आप रेफरेंसेस सुने, देयर एब्सोल्युटली अगेंस्ट द स्टेट ऑफ इजराइल। बल्कि एक अभी हाँ, जॉइंट स्टेटमेंट आया था ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से, जिसमें देयर one of the bishops, I think he's a bishop, I've forgotten what he is, like he's like up there when it comes to the Greek Orthodoxy. He basically made a very direct statement कि यहाँ पे तो ये लोग हमारे oppressor को support कर रहे हैं, rather than बिल्कुल। they're supposed to be the people who are supposed to be like sentimental with us, who share a religion with us, who believe in Jesus. We're referring to the evangelical Christians. They're basically, he came up with the term, and there's a reason why evangelical Christians are referred to as Zionist Christians, because they basically want the state of Israel to exist. So the prophecies basically come true, and that is going to ignite the second coming of Jesus. Yeah, हाँ, सही, so I think that's ठीक है। that. हाँ, ये एक तो बात है। देखिए, इसमें सारी ये चीज नजर आ रही है हमें कि यहाँ पर अब देखें, ये अब सवाल यहाँ पर किसी के जहन में पैदा हो सकता है, भाई आप डॉक्टर जैदी आप तो बात कर रहे हैं पुरानी बिजेंटीन एम्पायर की बात कर रहे हैं, वो बिजेंटीन एम्पायर तो है नहीं। आप किस तरीके से रशिया को इसके साथ लिंक कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ। हुआ ये है कि जब 15th सेंचुरी में यहाँ पर टर्क्स आ गए थे और ऑटोमन्स जिन्होंने कब्जा कर लिया था कॉन्स्टेंटिनोपल, तो वहां पर उनकी एक शहजादी थी, प्रिंसेस थी। उसका नाम यार मैं भूल रहा हूँ अभी, जरा अगर आप कहें तो मैं फिर बाद में अब निकाल दूंगा, मेरे जहन में हाफजे में इस वक्त मेमोरी में मौजूद नहीं है। वो वहां से निकल के जो है ना यूक्रेन आ गई थी, और यूक्रेन में उसकी एक शादी एक रशियन प्रिंस के साथ हुई थी। और फिर बाद में ये जो आपको निकोलस जार जो नजर आता था ना, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जो जार हुआ करते थे, जार डायनेस्टी हुआ करती थी, अगर शायद नाम याद हो कि वो जो एक पूरी उनकी जो जो क्वीन एलिजाबेथ का अंकल था, and he was the जी जी first जी cousin जी of जी, the हाँ king at हाँ the हाँ time. Yeah, हाँ, carry on. वही वही, Nicholas, हाँ Nicholas वही है। King. हाँ, बेसिकली ये जो है ना रुमेनियन पोलिश डिसेंट के लोग थे, लेकिन आइवन द टेरेबल जो था ना वो उसी एक जो बड़ा एक वो गुजरा है इनके इसी डायनेस्टी का,
बादशाह, वो उस मलका की जो है ना, वो क्या कहते हैं, उसका पोता था, हुआ करता था। और वो जो कॉन्स्टेंटिनोपल से ये लोग निकले थे, और ये उस जमाने में जो सीजर्स हुआ करते थे ना, जब वहां वहां पर उससे बिलोंग करता था। तो ये देखिए, यहाँ पर यही हुआ है कि ये रशियंस ये कहते हैं कि जो असल हकदार हैं हम, वो इसी वजह से हैं कि वो जो नोबिलिटी थी ना, वो हम में मुंतकिल हो गई है यहाँ। और फिर यही जो लेकर इसको कॉन्सेप्ट को आगे लेकर बढ़ा है, खास तौर पर आप यूक्रेन वॉर भी जो देख रहे हैं ना इस वक्त, वो ये इसके पीछे एक डोमिनेटिंग फैक्टर ये भी है कि जो यूक्रेन है वो तकरीबन तकरीबन ऐसा ही है, क्योंकि जो सारा सिलसिला शुरू हुआ है रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन चर्च का, वो यूक्रेन से शुरू हुआ है। और वो उसकी वजह भी यही है कि वो शहजादी वहां से उस तरफ आ गई थी, यूक्रेन। और फिर कैथरीन द ग्रेट के जमाने में, और ये सारा जो चर्च डेवलप हुआ, और ये सारे मामला जो है इस तरीके से गए, वो इसी तरफ हमारी ये निशानदाही करते हैं। तो ये जो एक कॉमन लिंक यहाँ पर भी पाया जाता है यूक्रेन वॉर का और मिडल ईस्टर्न वॉर का, कि ये बुनियादी तौर पर बेसिकली जेरूसलम के लिए जो है फाइट है। जो रियल जो इशू है वो यही है। इसके पीछे अगर आप कोर में जाकर देखें, डीपली जाकर देखें, एनालाइज करके देखें, तो हमें यरूशलेम ही नजर आएगा। वो क्यों क्यों उसकी वजह यह है सिर्फ और सिर्फ कि जब ज्यूज आना शुरू हुए हैं यहाँ पर और आबाद आना शुरू हुए हैं, तो दुनिया में हर बंदे को यह एहसास हुआ कि ताकत के बलबूते पर जेरूसलम पर शायद कब्जा किया जा सकता है। यही वजह थी कि रशिया में भी ये ख्याल पाया जाता था कि हम जो हैं क्या कहते हैं कब्जा कर सकते हैं उन इलाकों पर जिन पर हमारा हक है। खास तौर पर अगर आप देखें, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसमें ये मुआहदा हुआ था रशियंस के साथ, जो एंग्लो सैक्सन ऑर्डर का, कि वो ये चाहते थे कि कॉन्स्टेंटिनोपल उनको दे दिया जाए, यानी रशियंस को दे दिया जाए। लेकिन बिल्कुल उसके बरक्स हुआ है कि वहां पर जो है इन्होंने ये मुआहदा कर चुके थे मुस्तफा कमाल पाशा के साथ कि हम रशिया को नहीं देंगे, और टर्क्स जो थे वो बचाने में कामयाब हो गए कॉन्स्टेंटिनोपल को। लेकिन वो जो दस्तबरदारी का बात है, वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन जो चर्च है वो अभी तक नहीं हुआ है। उसका जेरूसलम पर भी क्लेम है, उसका कॉन्स्टेंटिनोपल पर भी है। जब ये इसराइल का कयाम हुआ है, तो माइट इज राइट वाला जो कॉन्सेप्ट है, उस वो चेन रिएक्शन शुरू हो गया है, और अब हम ये सारा जो मामला जो है ना ये होते हुए देख रहे हैं। जी, ये थोड़ा सा मैंने सम अप करने की कोशिश की है। थैंक यू जैद साहब, और काफी आपने इलेबोरेट किया इस टॉपिक पे। पर मेरा ख्याल है थोड़ी सी ना डिस्कशन आई थिंक went into politics and historical backgrounds of things, और also the current situation, और उससे पैटर्न्स ड्रॉ करके लिंक बनाया गया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आई वुड गो बैक टू अ सर्टेन डिस्कशन जो कि स्टार्ट हुई थी कि ये लैंड है किसकी, बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर्स। उसमें क्या चीज है जो कि वाई, क्योंकि मैं जब भी एक चीज सोचता हूँ कि क्योंकि ज्यूज वर इन यूरोप, ऑल अक्रॉस द ग्लोब, जमीन है कहीं भी जाके, they could have cultivated land, they could have developed the land. Why they chose this specific region, this specific location, और हमारे स्क्रिप्चर्स उसके बारे में क्या कहते हैं जैदी साहब? उनके स्क्रिप्चर्स तो इंडिकेटिव हैं। दैट्स व्हाई दे वेंट टू अ प्लेस जहां पे ना पानी है, इट्स अ डेजर्ट, एंड इट वाज अ डेजर्ट जब वो उधर गए, और ना इधर ऑयल है, और सराउंडेड बाय मुस्लिम कंट्रीज। सिक्योरिटी इश्यूज उनको हमेशा रहेंगे। वो क्यों उधर गए, उनके स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं, और फिर देन मुस्लिम स्क्रिप्चर्स और क्रिश्चियनिटी में इसके बारे में क्या है, ये लैंड है किसकी बेसिकली। हाँ, देखिए, मुस्लिम स्क्रिप्चर्स के मुतालिक तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया है कि ये इस वजह से जो है हम क्लेम करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये तमाम जो अंबिया यहाँ पर आए इस सरजमीन में, ये मुसलमान थे। ये ना ज्यूस थे, ना ये क्रिश्चियंस थे, यानी ये ना ये यहूद थे, ना ये नसारा थे। हमारा क्लेम ये है, ठीक है ना। और ये लैंड हमें बिलोंग की जाती है, हमसे वो
रखी जाती है। इसमें हमारा एक और ये कॉन्सेप्ट भी है कि देखिए फिर ये हम इसमें जो है ना फिर हमारी अहादीस आ जाती हैं। इसमें कुरान जो है वो थोड़ा-सा हमें बहुत ज़्यादा तफ़सीलात नहीं देता। हमें जो देता है तफ़सीलात वो हमारी अहादीस देती हैं। फिर वो एंड टाइम्स की जो अहादीस हैं उसमें वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कि भई देखिए एक वक़्त आएगा कि मुसलमान जो है ना इस इलाके पर जो हमारी ये बात आ जाती है कि जो हमारे मेहदी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि खिलाफत जो मिनहाज नबुवा जो स्टार्ट होगी, जो 5th हमारा जो पीरियड शुरू होगा, वो फिर बैतुल मुक़द्दस से शुरू होगा। यरूशलेम में हज़रत इमाम मेहदी जो जब आएँगे, उनकी खिलाफत जो कायम होगी वो यरूशलेम में होगी। यही वो वजूहात हैं कि आज हम क्लेम कर रहे हैं कि इस जगह पर हमारा हक है, हम यहाँ से चूँकि स्टार्ट करना चाहते हैं, हम दुनिया को एक निज़ाम देना चाहते हैं। वो निज़ाम चूँकि हम ये समझते हैं कि पूरी दुनिया में इनजस्टिस है इस वक़्त और हमें जस्टिफ़ाई करना है, हमें एक ऐसा जस्टिस सिस्टम लाना है पूरी दुनियाए इंसानियत के लिए, जो कि पूरी दुनिया के लोगों को इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करे। ये इसमें ये मैं आपको यहाँ ये एक बात बता दूं कि ठीक है ईमान की बुनियाद पर सब कुछ होता है और अपने है, लेकिन इस्लाम के अंदर भी एक कॉन्सेप्ट मौजूद है कि वो तमाम लोगों को, तमाम इंसानियत को एक नजर से देखता है। ठीक है, तो ये वाली बात है कि यहाँ पर फिर जो हमारी अहादीस हैं वो इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। फिर वो दज्जाल की अहादीस हैं वो हमें मिलती हैं। ये हमारे यहाँ स्क्रिप्चर्स मौजूद हैं, मुस्तनद अहादीस मौजूद हैं, जिसकी बुनियाद पर हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा यहाँ पर है। जी Ji, thank you. We have two new speakers. Although we are having a discussion on uh, the religious aspects, जो कि आपके Israel and Palestinian conflict के अंदर आते हैं, but I think Sid, just yeah, thank you. So I think although not from the Abrahamic Brotherhood, but we have Aditya and Andolan. Aditya, वेलकम। और आप तो इधर के ही हैं, तो लाइक आपकी कोई स्टार्टिंग स्टेटमेंट? आदित्य जी। मैं एक बार सुनता हूँ फरकान भाई एंड Yeah, आई I'm going to विल ask you a direct question, Aditya. Do you think the Palestine-Israel issue is a geopolitical issue, or is it a religious issue, or religion, or geopolitics? Either one of them is being used for part and parcel power, or is it religious prophecies just simply coming true, or are there certain powers who are trying to show their hegemony and use the religious sentiment as a religion being the fault line there? तो ये काफी ओपन क्वेश्चन है, एंड आई थिंक दिस बहुत will bring the बहुत conversation. बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मैं इसका बहुत है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे सकता हूँ, शायद जिसको कोई कोई भी डिस्प्यूट भी नहीं कर सकता जिस आंसर को, कि आई थिंक 95% लोग जो है ना एग्री करेंगे कि ये जियो पॉलिटिकल इशू भी है और ये एक रिलीजियस इशू भी है, और जो कहता है इट्स जस्ट वन ऑफ दोज तो वो बिल्कुल झूठ होगा। इसमें जियो पॉलिटिक्स है वो क्लियर इस चीज से हो जाती है कि अगर आज कोई कहता है, लोग कहते हैं ना कि यार कुछ जो है मुस्लिम साइड कहती है या अरब जो कहते हैं कि यार चलो टू स्टेट सॉल्यूशन को हम एग्री करने को तैयार हैं, तो भैया आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आज की तारीख में इसराइल जो है इट्स नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू अ टू स्टेट सॉल्यूशन। उनको कहीं ना कहीं इस टाइम ये रियलाइज हो रहा है, क्योंकि जिस जिस साइड वो खड़े हैं और जो पावर्स उन्हें सपोर्ट करती हैं, जो आपकी वेस्टर्न पावर्स हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें टू स्टेट ऑफर करने की आज कोई ज़रूरत नहीं है। जो 1950 60s और इवन 70s तक उन्होंने जो एक टू स्टेट सॉल्यूशन जो भी मतलब एक उनके अकॉर्डिंग वो जो है एक अच्छा जो है था, जो कि इनिशियली जो है पैलेस्टाइन और जो नेबरिंग कंट्रीज थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, बट उस टाइम जो है एक्चुअली जो है इसराइल ने जो है ना कोशिश की एक टू स्टेट सॉल्यूशन की। पर आज अगर कोई आप अगर मैंने जैसे कुछ
जो है मैं ऑनलाइन भी और मैं पर्सनल लाइफ में भी जो है कई जूस से मिला हूँ, तो आपको बातों में ज़रूर वो कह सकते हैं कि यार हाँ, टू स्टेट जो है हुआ था ये। आपको कोई एक्टिवली कोई जू रेयरली शायद कोई मिलेगा जो आपको कहेगा कि हम एक्टिवली जो है एक वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ टू स्टेट सॉल्यूशन। उनको कहीं न कहीं लगता है कि ये इनको जो है ना जैसे अभी कोशिश की गई कि कुछ जो है ना डिस्प्लेस किया जाए जो फ़लस्तीनी है उनको, और कहीं न कहीं बस उनके दिमाग में ही है या तो इन्हें दबाया जाए या फिर ये जो है ना ये जगह छोड़ के चले जाएँ। तो मुझे लगता है आई सीरियसली थिंक कि जो है जो ज़ायनिस्ट्स हैं जो पैलेस्टाइन में रहते हैं, उनका कोई प्लान नहीं है टू स्टेट सॉल्यूशन का। दे वांट वन स्टेट एंड द वन स्टेट शुड बी इज़राइल। बट हाँ, अगर कोई कहता है इसमें रिलीजियस एंगल नहीं है, तो जो जूस हैं उनको अर्जेंटीना जो है वहाँ पे ज़मीन जो है ऑफ़र की गई थी, दे रिफ्यूज़्ड। उन्होंने कहा हम अर्जेंटीना में ज़मीन नहीं लेंगे, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग मतलब शायद लाखों जो है जर्मन्स जब है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जाके अर्जेंटीना में बसे, उन्होंने वहाँ पे एक अच्छा खासा चंक एरिया है जो कि जो है जर्मन अर्जेंटीनियंस से जो है भरा हुआ है। तो अर्जेंटीना इट्स नॉट वेरी पॉपुलेटेड कंट्री, तो वो ले सकते थे वहाँ पे भी, उन्होंने रिजेक्ट किया वो, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट लैंड फॉर द जूस, इट्स मोर अबाउट अ लैंड फॉर लैंड विच वाज प्रॉमिस्ड टू देम। इसलिए वो हमेशा कहते हैं दिस इज आवर प्रॉमिस्ड लैंड। ये वो जमीन है जहाँ से हमें निकाला गया था और यहाँ पे हम वापस आए हैं। और जब कहते हैं ना जियो पॉलिटिक्स के साथ एक कहते हैं ना रिलीजन का जब तड़का लगता है, तो उसके साथ जो है ना आपको एक उस लड़ने के लिए जो है एक मोटिवेशन भी मिलता है। तो आई थिंक इट्स जियोपॉलिटिक्स बट इट्स आल्सो रिलीजियस। और यू विल बी सरप्राइज्ड, इवन स्टालिन जो है उस टाइम पे स्टालिन इवन ऑफर्ड द जूस होमलैंड। आप मानेंगे नहीं, हमारे यहाँ पे एक जो है उन्होंने कुछ टाइम तक जो है रेफ्यूज भी दी थी, एंड दे इवन ऑफर्ड अ स्टेट। गुजरात के जो है आपके गुजरात के जो है एक प्रिंस हुआ करते थे या किंग हुआ करते थे, उन्होंने भी जो है उस टाइम पे जो है कुछ जो है रखे थे अपने जो जूस पारसियों है को उनको, दी है थी। ना। जी मेरे जी ख्याल है आप जूनागढ़ स्टेट की बात कर रहे हैं। जी, गुजरात मुझे उन्होंने एग्जैक्टली पता नहीं, बट उन्होंने पारसियों को उन्होंने पारसियों को दिया पार्स था। पर पार्स हाँ, पर ज्यूस की एक ट्राइब इंडिया भी आई थी, बट दैट वाज नहीं लॉन्ग नहीं, मैं बैक। 1940s 30s की बात कर रहा हूँ, हॉलोकॉस्ट के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, दिस वाज हॉलोकॉस्ट के टाइम एक शिप आया था। हाँ, हॉलोकॉस्ट के जी टाइम जी शिप आया था तो उनको आश्रय दिया गया था। दैट इज ट्रू। हाँ, तो उन्होंने कहा भी था अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं हमारे रूल के अंडर, तो उन्होंने इवन जो है कोशिश की थी अकोमोडेट करने की। तो इट्स नॉट दैट कि उन्हें ऑफर्स नहीं मिले थे, उनको ग्लोबली जो है कई स्टेट्स ऐसे थे जो इन जूस को जो है एक कहते हैं ना सेमी ऑटोनोमस या जो भी कहते हैं ना एक पार्ट ऑफ रीजन देने को तैयार थे, बट दे नेवर इवन लाइक हैड अ सेकंड थॉट अबाउट इट कि हम वहां पे जाके कहीं भी बसेंगे दुनिया के किसी कोने में भी। दे चोज की कहते हैं ना एक ऐसा एरिया जहाँ पे पानी नहीं आता, जहाँ पे कुछ उगता नहीं है, जहाँ से तेल नहीं निकलता, ठीक है, और जो कि तीनों साइड से जो है सो कॉल्ड, मैं एग्जैक्टली तो किसी को एनिमी नहीं कहना चाहूंगा, बट सो कॉल्ड जो है परसीव्ड एक एनिमी बसता है, उनके बीच में जाके वो बसे हैं। तो इट्स नॉट दैट सिंपल। कोई अगर सिर्फ ये कहे कि ये सिर्फ जमीन की लड़ाई है तो भी गलत होगा, और कोई कहे कि सिर्फ रिलीजियस लड़ाई है तो भी गलत होगा। दैट्स माय ओपनिंग स्टेटमेंट। Thank you, Aditya, and I think it was a very nice put opening statement. And thank you, Shaji, for the interesting prompt and question. मेरा इससे एक क्वेश्चन और निकल रहा है, और like it's open for all the panelists, but mostly we have inclusive discussions, but थोड़ा सा जो मुस्लिम पैनलिस्ट बैठे हैं उनसे मैं पूछूंगा कि वन स्टेट सोल्यूशन में कोई मसला नजर आता है आप लोगों को, क्योंकि देर आर मुस्लिम्स करंटली लिविंग इन इजराइल, और जो मैंने डाटा देखा था some time back, it was around 1/5 of their population is already Muslim. 18%। अराउंड 16 18। 17% आर जी जी, मुस्लिम वन इन इजराइल। फिफ्थ कहता हूँ 18 to 20% जो डिफरेंट सोर्सेज से मैंने देखा था। ये आंदोलन जी ने बिल्कुल करंट साइट किया है कि 18 to something 20% दो तीन सोर्सेज कह रहे थे, तो 1/5 हम कर लेते हैं।
वो ठीक है this is इस excluding जी the जी जी सवाल का अच्छा अच्छा this is अच्छा let me phrase the question and then like open for discussion कि अभी भी currently उधर मुस्लिम्स रह रहे हैं तो one state solution चले two states would have been a amazing solution superb like we say here wunderbar but like one state solution में मसला क्या है क्योंकि currently 1.7 million 1.8 million almost is the population of Muslims living in Israel जी जी, मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। जी ये ये सवाल मेरे ज़हन में भी पिछले काफ़ी अरसे से रहा, क्योंकि मेरे कुछ जूइश कॉलीग्स भी थे, उनसे थोड़ी बहुत बातचीत, ज़्यादा तो हम पॉलिटिक्स पर बात नहीं करते थे, लेकिन थोड़ी बहुत बातचीत हुई। तो मुझे ये देखिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं होता इस बात पर, वन स्टेट सॉल्यूशन पर, अगर जो फ्रीडम थी ना मुसलमानों को इज़राइल दे रहा होता। अनफॉर्च्यूनेटली ऐसा हो नहीं सका है। इज़राइल का रवैया मुसलमानों के साथ, वहाँ पर जो बसने वाले पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स हों, उनके साथ जो है ना, क्योंकि ज़्यादा मेजॉरिटी तो उन्हीं की है ना, क्रिश्चियंस हैं लेकिन बहुत कम है। जो मेजॉरिटी हैं वो तो मुस्लिम्स हैं। उनके साथ जो रवैया रहा है वो बहुत ही हार्श और बहुत ही खराब रहा है। खास तौर पर ये जो ओस्लो एकॉर्ड के बाद जहाँ 2 स्टेट की बात की गई थी ना, उसके बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा खराब होता चला गया है। तो इसमें तो मैं समझता हूँ कि आप इसराइल को ब्लेम दें ना, कि भई इसराइल ने ऐसा होने नहीं दिया। अगर वो रिस्पेक्ट करता मुसलमानों की वहाँ पर और उनको वो जो चॉइसेस थे वो देता, तो मेरा ख्याल है ये शायद मसला ऐसे नहीं होता जिस तरह से आज मौजूद है। ये मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। जो 18% पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, वो इजराइल स्टेट की है, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक हटा के। ठीक तो है। मेरे ख्याल से जी अभी जी इससे वही जी कह पहले रहा जो हूँ हमारे भाई जी बात कर रहे थे, हाँ, इससे पहले जो हमारे शायद भाई बात कर रहे थे, वो हाँ, बात ये शायद कर रहे थे, क्योंकि इजराइल में अगर आप सिटीजन है, जो 15% पॉपुलेशन है, उनके पास बिल्कुल सेम अधिकार है वोटिंग का, गवर्नमेंट जॉब्स का, इवन जो मिलिट्री में जो परमानेंट वो इनका जो पार्टिसिपेशन होता है ना स्कूल के बाद, उसमें भी वो सारे प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड देयर हैजंट बीन एनी, तो जो भी ये जिस तरीके का डिस्कशन आता है, ये गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को लेके तो आता है, लेकिन इजराइल में रहने वाले मुसलमानों को लेके इस तरीके का कभी कोई इशू नहीं आया है। जी, जी। नहीं, ठीक है, वो बात आपकी सही है, लेकिन क्या हम पैलेस्टीनियन इश्यू को, मुस्लिम्स के इश्यू को अलग करके देख सकते हैं यहाँ पर? इस खित्ते की बात कीजिए ना, रीजन की बात कीजिए। जब आप रीजन की बात कर रहे हैं, तो जैदी साहब जो आर्गुमेंट सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आर्गुमेंट ये है कि आंदोलन जी और गुड विद नंबर्स मेरा ख्याल है इतने ही तकरीबन मुसलमान गाजा स्ट्रिप पे हैं 1.78 थोड़ा सा कम होंगे या अराउंड इसी नंबर के गाजा स्ट्रिप पे भी है आंदोलन जी 2.3 मिलियन 2.3 मिलियन ठीक है हाँ तो अराउंड अराउंड लाइक करीब करीब है जो कि इसराइल में रह रहे हैं मुस्लिम्स और जो कि गाजा में रह रहे हैं थोड़ा बहुत फर्क है 19-20 का आप कह लें तो ठीक है, कहने का ठीक है। मकसद ये है वेस्ट कि जो बैंक वन में भी तो स्टेट रहते हैं सोल्यूशन ना जी 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 जो ये आपके वन स्टेट का सोल्यूशन है वो इज इट फिजिबल क्योंकि जो आंदोलन ने बात की है आई वुड सेकंड दैट जो मैंने चीजें पढ़ी हैं दे हैव ऑल द राइट्स हाँ हाँ, कुछ ठीक है, इश्यूज सही है। हैं जिस माने तरह नहीं रमजान में अलक्सा से आती हैं खबरें कि फुरकान भाई द जुल्म क्विक हुए आंसर जी Israel will never allow it. That's the answer. Furkan bhai, to basically look at what a one state solution would be, first of all, जो दो तरीके हैं इसको जज करने के, there are two layers to this. The first layer is that the state of Israel currently उनके जो Muslim residents हैं, उनके क्या laws हैं और उनके ऊपर क्या है, and you'll be surprised to know, even though they practice apartheid, but there are Islamic courts as well as the Jewish courts over there. जिस तरह फॉर एग्जांपल इंडिया की हम एग्जांपल ले सकते हैं, जिस तरह सुन्नी फैमिली लॉ बोर्ड है या मुस्लिम बोर्ड है, उसी तरह रिलीजियस इश्यूज के लिए और आर्म क्राइम के लिए, if you're a Israeli Muslim, you will have a Shari court. It's there.
सेकेंडली जो आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस और दूसरी चीज़ें हैं, या अगर आप ऑफिशियल लैंग्वेज और उनके बोर्ड्स और इधर उधर जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखें तो दे कम इन 3 लैंग्वेजेस. दे कम इन Hebrew, they come in English, and they come in Arabic. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि दिस इज़ वेरी सिमिलर टू अनदर स्टेट जो इससे पहले एग्जिस्ट करती थी, जहाँ पे डिस्पैरिटी या जो अपार्थाइड था, एंड वेयर द टर्म अपार्थाइड कम्स फ्रॉम हैपेंस टू बी साउथ अफ्रीका. ऑन पेपर साउथ अफ्रीका के अंदर भी ये सारी चीज़ें एग्जिस्टेंट थी फॉर रिच ब्लैक पीपल, and Africans who are known as who are basically the white African people of South Africa, जो उनके साथ सही तरह से एफिलिएटेड थे या दूसरी एथनिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, दे वुड ट्रीट देम इन दैट वे, उस पर्टिकुलर 18% की तरह, और उनको उन्होंने पूरे राइट्स दिए हुए थे. एंड एट टाइम्स यू वुड सी दीज ब्लैक एंड इंडियन ओरिजिन stroke Asian origin Kenya, people studying in the same school even though apartheid was practiced. Does that mean the main issue is gone? So what is it stopping the Israelis from having, or Palestinians from having one state solution? What is stopping are the rights of the Palestinians who happen to live in the Gaza Strip right now. That is point number one. They would have to enjoy exactly the same rights as a complete Israeli citizen. Those walls will have to be eliminated. They will have to be integrated within the society. Now, why is that not possible and why they don't do it? Because that would create a state which is not going to be predominantly Jewish in terms of its laws and what it wants to achieve. तो यहाँ पे एक डिस्पैरिटी आता है. दूसरी उसके अंदर एलिमेंट ये है कि इज दिस समथिंग द पैलेस्टीनियंस वुड वांट? Is there something which majority of Palestinians would agree with? तो ये 3-4 इसके अंदर आपको लेयर्स को देखना पड़ेगा if you're going to like look for a single state solution. The third aspect which needs to be looked at is a two-state solution even possible anymore? So if it's not possible because of the settlements or 70 saal se, or 70 odd years, more than 70 years now, there are Christians from that local area who've been displaced. There are Muslims who are having an ongoing issue. And then you have the Jews. And if we are fair to an extent, कि उनकी भी चौथी पांचवी जनरेशन है, अगर उनके पेरेंट्स कई लोगों के सेटलर्स भी थे, दे आर नॉट गोइंग टू इजीली लीव दैट प्लेस आर दे. सो क्या इक्वेट ये करने की रीजनेबल तरीके से ज़रूरत है कि क्या एक टू स्टेट सोल्यूशन हो सकता है, और अगर टू स्टेट सोल्यूशन नहीं हो सकता तो हाउ डू वी गेट रिड ऑफ द अपार्थाइड एक्टिविटीज, और इज इजराइल रेडी टू डू दैट? And what percentage of Palestinians are willing to look for a single state solution? क्योंकि Thank you. then you have a अच्छा, clearer answer. मैं Yeah, एक thank चीज you. ऐड करना चाह रहा था. There's some एक second. I think परमिशन. those are very strong arguments what Shah raised, and one of the strongest argument जिनसे मेरा ख्याल है आंदोलन can a bit resonate with is जो demographic change की बात की है. If 1.7, 1.8 million Muslims come into Israel, there would be a huge demographic change. And coming from India, आप ये resonate करके बेहतर बता सकते हैं कि is it one of the motivators of not including them as a one state, और इनको push करके एक isolated जगह पे ही रखा जाए आंदोलन? जी इसमें ये देखिए इट्स सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन लाइक कि कि क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश को इंडिया में दोबारा इंटीग्रेट करा जाए, राइट? तो इट्स अ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन कि वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप वो ऑलमोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनका अपने हिसाब से चलता है, ठीक है, ब्लॉकेट्स वगैरह, देयर आर सम एस्पेक्ट्स विद पीपल रेस. बेसिक इशू क्या है यहाँ पे? बेसिक इशू यही है ना, पीपल आर नॉट रेडी टू कोएक्सिस्ट, राइट?
And which are these set of people who are not ready to coexist? That has to be clearly articulated. So we talked about 20% of Israel population. I'm talking about the Israel population without considering the current Gaza Patti and the West Bank. There is substantial chunk of minorities, and these minorities have not reduced over a period of time. Now let us look at the Gaza Patti and the West Bank side of things. What is the status of minorities over there? While we, talk about, the one specific minority with reference to Israel, we should also talk about what's happening to Jews on the Gaza Patti and the West Bank, what's happening to Christians on the Gaza Patti and West Bank, and of course, people who do not belong to Abrahamic ecosystem in the entire Middle East ecosystem. So somewhere those aspects are also to be considered, that who is not ready to coexist. इसराइल के पास 15-20% पॉपुलेशन है, इंडिया के पास 15-20% पॉपुलेशन है माइनॉरिटी, राइट, और वो बढ़ रही है, क्या कहते हैं, अच्छा काम कर रही है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन है. Can the same thing be said about the West Bank and Gaza Strip? The answer to that is no. आंदोलन जी जी, दादी साहब, जी जी आपसे मेरा एक क्वेश्चन है. डू यू कंसिडर द सिनेरियो एंड द सिचुएशन इन Israel parallel to India? There are few parallels, but not exactly parallel. Few parallels in the sense कि देखिए, ये जो बड़े बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना, जब बेसिक लेवल पे आप यही बेसिक क्वेश्चंस किसी दूसरे के शूज में खड़ा होकर करते हैं, right? So let's take an example of red Indians today, right? Who are the native, inhabitants of US or aboriginals in Australia. Now let's say tomorrow they say, all settlers in the last 500 years needs to move out. This is my land, right? How genuine would that demand be? Right? आपको क्या लगता है? I don't think it will be genuine at all. नहीं, आपको क्या लगता है? What should be the correct solution to the Israel-Palestine issue? I would like to input here a little bit. आंदोलन जी को पहले पूरा कर लेने दो ना, then hold on to your thoughts and write them down. It's only fair that everyone speaks like. मतलब, और ये एग्जांपल्स में डिस्कशन चालू करने के लिए नहीं, एक थॉट प्रोसेस चालू करने के लिए, सोचने के लिए बोल रहा हूँ आप लोगों को. जी बिल्कुल अब्दुल्ला जी, गो अहेड. ये बिल्कुल आई एग्री. हाँ, तो यहाँ पे आपको एक पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा कि जो को एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम आ रही है वो रिपीटेडली कहां से आ रही है और क्यों आ रही है. तो हम सोल्यूशन तब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तक हम प्रॉब्लम को पिन पॉइंट ना कर लें. और जहां पे आप प्रॉब्लम को पिन पॉइंट कर लेंगे, सोल्यूशन आना चालू हो जाएंगे. देखिए, अभी हम लोगों की शायद 2-3 दिन पहले भी यही बात हो रही थी. अभी जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, it is not about land or politics for Palestine people. What is currently happening? तो आपको लगता है आंदोलन जी, पहले फिलिस्तीनियों को हमें सुधारना चाहिए, फिर मतलब सॉल्यूशन की बात करें? मेरी पूरी बात सुन लीजिए. मैं 30 सेकंड दूंगा, मैं थोड़ा आराम से बात करता हूँ, पर मुझे लगता नहीं कि सब लोग जल्दी में है. तो मैं ये आपसे मैं ये केवल ये कहना चाह रहा था, जो हमास जो एक्टिविटी कर रहा है उसको जब आप डीप डाउन ड्रिल करेंगे तो क्या वो पैलेस्टीनियंस के लिए वो एक्टिविटी कर रहा है या किसी और के लिए प्ले कर रहा है? व्हाट इज हिज ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट ही इज डूइंग, फॉर whom he is doing? And that there lies the problem and there lies the solution. Once people start talking about their perspective, when we have interest of Palestinian people in mind, when we have interest of Israeli people in mind, the solution will come. But when the politics is that who would dominate the Muslim Ummah, whether it's going to be Iran or whether it's going to be Saudi Arabia, there would be hordes of people who would be sent to gallows by the political interest for others. अब ये समझदारी जो लोग उस फाइट में है उनको अपनानी पड़ेगी. तो अमेरिका पहले फिलिस्तीनियों को सुधारना चाहते हैं. मैं आखिरी पॉइंट कह रहा हूं. अमेरिका आज ये चाहेगा, हर कीमत पे चाहेगा कि हम उठें और चाइना से पंगा ले लें इंडियंस, और हम पिलें.
अब ये पड़ी लकड़ी हमको उठानी है या नहीं उठानी है, ये चॉइस हमारी है। That's a very fair नुकसान point. I think अच्छा मैं थोड़ी मैं Andolan थोड़ी ji, सी बात करना चाह रहा था। एक कमेंट कर दूं, then I'll come back to you. I think that's a very fair point क्योंकि internal जो जियो पॉलिटिक्स कह लें या पॉलिटिक्स कह लें, उसको रीजनल पॉलिटिक्स से जो कनेक्ट किया है, आई थिंक दैट इज अ वेरी फेयर पॉइंट क्योंकि इसमें इट्स नॉट जस्ट द पैलेस्टीनियंस एंड इजराइलीज, देयर आर द इरानियंस, देयर आर द सऊदी शेख्स कमिंग इन, तो और दूसरी एंटिटीज जो कि मेरा ख्याल है जो पॉइंट रेज किया है इन माय ओपिनियन इज फेयर। जी अगर जैदी इसको साहब, प्रॉपर्ली एनालाइज करें ना हम, तो हमें ये देखना पड़ेगा जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट कौन कौन सा है लोगों का, पार्टीज का, कंट्रीज का, इंटरनेशनली है, और रिलीजियस एंगल किस किस का है। यस बिकॉज यस द हाँ रिलीजियस लेकिन एंगल, मैं जरा थोड़ी बात करना चाह रहा था, काफी देर से पॉइंट्स हाँ है जी मेरे जहन में। बिल्कुल। जी जी जैदी देखिए साहब, पहले तो ये समझ लीजिए, मैंने इसीलिए इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बताया था कि इस आंदोलन की जो बात कर रहे हैं ना, मेरा ख्याल है विद ड्यू परमिशन, बहुत माजरत के साथ भी, कि ये थोड़ा सा सुपरफिशियल एनालिसिस है कि ईरान और ये जो बाकी बातें, क्योंकि देखिए ये तो बहुत बात की बात है ना कि ईरान इस चीज में एंटर हुआ है। इससे पहले पैलेस्टीनियन इशू तो बहुत पहले से चल रहा है, ईरान तो बहुत बात की बात है। ठीक है, एक तो ये बात है। वन स्टेट सोल्यूशन क्यों नहीं हो सकता, क्यों लॉजिकल नहीं है, क्योंकि देखिए ये ऑक्यूपेशन है। हम यहाँ पर कंपेयर नहीं कर सकते क्या साउथ एशिया को, हिंदुस्तान पाकिस्तान की कोई पैरेलल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ज्यूस तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। ज्यूस को तो जबरदस्ती यहाँ पर लाकर बसाया गया है 1948 के बाद। उससे पहले कोई यहाँ पर ज्यूस की आबादियां इतनी बड़ी थी नहीं, जो थोड़े बहुत थे वो थे। यही ये मैं बात बता रहा था कि रॉथस्चाइल्ड ने सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को द सेकंड को ये पेशकश की थी कि यहाँ पर ज्यूस को आने दीजिए, सेटलर्स को आने दीजिए, लेकिन वो इन्होंने इनकार कर दिया था। उस जमाने में ऑटोमन एम्पायर के ऊपर इतना कर्जा चढ़ चुका था, वही हाल था जैसे डेट स्पाइरल इस वक्त अमेरिका के पास है, करीबन करीबन वही सिचुएशन थी ऑटोमन एम्पायर की। लेकिन और वो चाहते थे कि बैंकर्स जो थे कि इस सारे डेट को इरेज कर दिया जाए, लेकिन सुल्तान ने इस बात से इनकार कर दिया था कि हम ये करें। अब वो इमोशनल था या क्या था, इसमें आप बहस कर लीजिए सारी बातें, लेकिन ये यहाँ पर ये हिस्टोरिकल एविडेंसेस मौजूद हैं। तो अब हम यहाँ पर सिर्फ सुपरफिशियल एनालिसिस करके ये कह दें कि हमास जो है क्या कहते हैं वो ईरानियन प्रॉक्सी बन गया है, या क्या कहते हैं इस्लामिक जिहाद जो है वो ईरानियन प्रॉक्सी बन गया है, या हिजबुल्लाह जो है, ये एक बहुत मेरा ख्याल है ऊपर से ही एक एनालिसिस देना होगा। इन डेप्थ एनालिसिस देने के लिए आपको इस खित्ते की तारीख को पढ़ना पड़ेगा, और मेरा नहीं ख्याल कि अब वन स्टेट सॉल्यूशन पॉसिबल है, क्योंकि इतना ज्यादा इसराइल की तरफ से हो चुका है। अब सिर्फ हम ये कह दें कि जी पैलेस्टीनियंस को कट कर दें, हम बात नहीं करना चाहते आपसे, पैलेस्टीनियन को इशू ही नहीं है, हम तो बात करेंगे मुसलमान मुल्कों से, तो बस करते रहिए, करते रहिए, फिर देखिए कि आप हमास जो है आपके साथ ऐसे कितने वाकयात करेगी। ये बात जी। उसके अलावा लेकिन जहाँ तक यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा डॉक्टर जैदी आपसे, डू यू एक्चुअली बिलीव कि ज्यूज जो हैं, चाहे वो वहाँ पे थे या नहीं, उनका उस लैंड से कोई कनेक्शन ही नहीं है? नहीं, Because that यहाँ पर is the कनेक्शन को कोई डिनाई नहीं कर रहा है शाहजी, यहाँ पर कनेक्शन को कोई डिनाई नहीं कर रहा है। किसी ने कभी भी, जो जितना भी ये मुसलमान वहां पर रहे, 1000 साल तक रहे, किसी ने कभी यहूदियों को डिनाई नहीं किया कि आप इस लैंड में एंटर नहीं हो सकते। कोई एक और प्राइम क्रिश्चियंस एग्जांपल का भी भी, आपको नहीं। वुड यू एग्री कि क्रिश्चियंस का भी एसोसिएशन है और मुसलमानों का भी है रिलीजियसली, तो तीनों एब्राहमिक हाँ रिलीजन जो ठीक है है ना, उनका वहाँ वहां पे वहां पर कनेक्शन। मौजूद रहे, वो करते रहे, कोई ऐसा इशू था ही नहीं। देखिए पैलेस्टीनियन या ये जो इशू था तो ये फिर कोई यहाँ पे मौजूद ही क्वेश्चन नहीं ये था। है, तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अब 70 इयर्स के अंदर से ये हो गया है एंड नाइदर ऑफ द थ्री पार्टीज आर विलिंग टू बैक डाउन, इफ वी आर गोइंग टू लुक फॉर an actual solution, doesn't it have to involve the acceptance and presence of all three religious groups, whatever ethnicity they belong? अच्छा Don't बस you यहाँ think? पर शादी मैं एक बात कहूंगा, सिर्फ एक बात फिर खत्म, फिर मैं सुनूंगा। मैं ये कहूंगा अनफॉर्चुनेटली कोई लॉजिकल इसका सॉल्यूशन अब नजर नहीं आता।
ये केओस है, इसका सिर्फ और सिर्फ शायद मिलिट्री सोल्यूशन ही निकलेगा अनफॉर्चुनेटली, जो कि एक बहुत ही मेरे लिए जो है अफसोस की बात है। जी शाहजी, मेरा एक प्रश्न था आपसे, हाउ इमोशनल इज योर पैनल टुडे? नॉट एट ऑल करण आपने आंदोलन जी। आपने जो भी बात करनी है आप करिए, मेरे पास तो कोई इमोशनल ओपनली पैरामीटर नहीं है, आप बात करिए। ओपनली करें आंदोलन, इवन इफ यू आर इमोशनल, you can speak whatever नहीं वैसे you एक want to. बात मैं बिल्कुल वैसे एग्री करता हूँ डॉक्टर जैदी की बात से कि देखें, जब तक पीस नहीं होगा तब तक हमेशा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का एक जो कहते हैं ना साया हमेशा मंडराता रहेगा। तो अगर किसी को लगता है कि वॉर और जो है ये सारे जो है एक जो है प्रॉब्लम नहीं हो सकती फ्यूचर में, तो इट्स लाइक इट्स विशफुल थिंकिंग। बट जहाँ पे एक प्रेशर जो है वो बिल्ड होता रहेगा, तो कहीं ना कहीं से जो है वो आज नहीं 10 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद वो खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। जब तक पीस जो है नेगोशिएट नहीं होता तब तक वो खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि इवन इफ द इजरायली स्टेट, इफ दे बिलीव दैट दे हैव दे आर इन द एडवांटेजेस पोजीशन कि हमें अभी पीस की जरूरत नहीं है, तो आई थिंक स्टिल इट्स अ बैड आइडिया। अगर आपको लगता है आज आपको जरूरत नहीं है, तो भी ये कोई बहुत स्मार्ट मूव नहीं है। कि पिछले 5000 साल अगर आप इंसानी हिस्ट्री निकालते हो, तो जिंदगी भर हमेशा मतलब अगले आने वाले 5000 साल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो सुपर पावर नहीं रहना। मतलब आई एम नॉट लाइक विशिंग फॉर इट, पर ये ह्यूमन हिस्ट्री हमें सिखाती है कि जो ग्लोबल पावर सेंटर्स हैं वो चेंज होते रहे हैं। तो अगर कल को ये फिर से जो है पावर सेंटर शिफ्ट होते हैं और अमेरिका जो जिस तरीके से अपनी पावर प्रोजेक्ट कर पाता है अभी वो नहीं कर पाएगा, तो ये खतरा तो हमेशा मंडराता रहेगा। तो द बेस्ट थिंग फॉर द इजरायली स्टेट इज, इफ दे आर स्मार्ट इनफ, थिंक अबाउट द फ्यूचर। अगर वो एक पॉसिबल या तो वन स्टेट सॉल्यूशन, जो कि आई हाईली डाउट कि इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। अगर वो पॉसिबल होता वो 67 में कर चुके होते, बट दे नेवर वांटेड टू डू वन स्टेट सॉल्यूशन। क्योंकि फिर जो है वहां पे अगर आप पैलेस्टीनियन जो है वो 7 मिलियन रहते हैं वहां पे, वेस्ट बैंक और गाजा मिला के और इसराइल में मिला के एक इक्वल नंबर ऑफ जो है ना वो पैलेस्टीनियन रहते हैं जितने जूस हैं। तो आपको जो है पावर शेयर करनी पड़ेगी, और वो सिर्फ और सिर्फ एक जूइश स्टेट नहीं रहेगा, फिर वो जूइश मुस्लिम स्टेट बन जाएगा, वो जो कि इसराइल कभी भी नहीं होने देगा। अगर होना होता तो 67 में हो चुका होता। और ये तो वो I हैं जो completely agree with you, Aditya, and that's why I raised that question. Is our Palestinians से तो बाद में ये question होगा, are even Israelis willing to do that? दे विल नेवर अलाउ इट। अगर उन्हें करना होता तो 67 में कर चुके होते। और इसी वजह दे से मुझे मेड हैरत श्योर। हो रही थी, मुझे बहुत हैरानगी हो रही थी, and I was surprised when आंदोलन जी basically compared is the state of Israel with India, with all its problems, with different minorities and everything. I don't think India practices apartheid in that way. Even in the case of Kashmiris, अगर आप देखें तो it would not be wrong to state हाँ, कश्मीरी कश्मीर में आप लोगों को देखिए, इंडियन लेकिन आई स्टेट एग्री। अपना एक्सेप्ट करती है। देखें कश्मीर में, देखें वहां पे जो है जुल्म होता है लोगों के साथ में, वहां डिस्क्रिमिनेशन है, वहां हजार समस्या हो सकती है, बट कोई ये नहीं कह सकता कि जो कश्मीरी है वो इक्वल सिटीजन नहीं है। ऐसा एक हाँ, भी ऐसा या राइट उसको नहीं है। इंडियन नहीं कंसिडर करते, वहां पे तो हाँ, ऐसा प्रॉब्लम ही एक भी डिफरेंट है, ऐसा इट्स नॉट अधिकार अबाउट। नहीं है, ऐसा कोई एक भी ऐसी एथनिक कोई। क्लिंजिंग नहीं है कश्मीर में, हाँ कोई एथनिक हाँ क्लिंजिंग नहीं है, ये हाँ, सबसे ऐसी अच्छी ऐसी बात कोई है भी, बात की। जैदी साहब ऐसी कोई भी है ना, ऐसी मेरे जी, पास ऐसा कोई राइट नहीं है जो कि ये आप कश्मीरी के पास मेरे ना ख्याल हो। से जितने आप अधिकार मेरे ख्याल जितने राइट्स से मेरे पास narrative हैं का 100% इक्वल आदित्य कश्मीरियों के आदित्य पास है। एक हाँ एक भी ऐसा आदित्य, राइट नहीं है जो मेरे पास एक्स्ट्रा किसी मेरी कश्मीरी में। तो आवाज आ ये रही चीज पैलेस्टीन में नहीं है। मेरी पैलेस्टीनियंस आवाज जो है उनको तो आप वो एंटर भी नहीं करने देते इसराइल में बिना जो है स्क्रूटनी के और पूरा चेकिंग कराए बिना, और जो है उसमें भी जो है हर किसी को अलाउ नहीं करते वो। उन्होंने इतनी ऊंची ऊंची मेरी आवाज दीवारें आ रही बनाई हुई है अपने आप को अलग करने के लिए, और स्पेशल परमिशन लेके कुछ लोगों को जो है वो क्रॉस करने देते हैं, वरना तो मेजोरिटी को तो क्रॉस भी नहीं करने देते वो। जी 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 आंदोलन जी जी, प्लीज गो आंदोलन जी अहेड, कुछ प्लीज गो कहना अहेड। चाह रहे हैं, बोलिए जी। मेरे ख्याल से ये कंपैरिजन जो आपने वो उसकी लय थोड़ी सी गलत पकड़ी आदित्य जी। मैं आई थिंक गाजा और आंदोलन जी आप कुछ बोल रहे हैं बट आपकी आवाज नहीं आ रही।
Am I नहीं audible? नहीं, मुझे आवाज आ रही है। नहीं आ रही है आंदोलन, यू आर ऑडिबल। अच्छा, मेरी then Aditya को शायद नहीं सुनाई पड़ रही है। So when I was comparing my equivalence was West Bank and the Gaza Strip. The equivalence was Pakistan and Bangladesh, not Kashmir, right? So what I was mentioning that India being a state where minority stays, right? And I said if you have to include Pakistan and Bangladesh back again, right? What would be the kind of scenario? Would be the kind of scenario if Israel includes Pakistan, Gaza Patti and West Bank into in a one nation concept. That would be the scenario that I was, drawing an equivalence to. तो ऑलरेडी अब जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने आप में एक सेपरेट कंट्री है, पर वैसे गाजा पट्टी और आपका वेस्ट बैंक सेपरेटली एडमिनिस्टर्ड है। इनका इजराइल से कोई लेना देना एज सच अभी नहीं है। इजराइल इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करता है इन स्पेसेस में, पर मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सेपरेट टेरिटरी, सेपरेट लॉज, separate governance models, etc., all of those things. So there I was drawing my parallel from. So that was one point. अच्छा, इसमें एक एस्पेक्ट आप लोग भूल जाते हैं। जब भी हम लोग बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, हम लोग बात करते हैं तीन रिलीजन, राइट? अब हिस्ट्री पे ही बात करते हैं। ये मूर्ति पूजक रिलीजन कहा जाएगा। जो मेन श्राइन है सऊदी अरेबिया में, उसमें से 360 मूर्तियां निकाल के तोड़ी गई थी, तब श्राइन टेक ओवर हुई थी ना। दैट वाज नॉट अ इस्लामिक श्राइन, राइट? वहां पे लोग रहते थे जो उस तरीके की पूजा पद्धति में विश्वास करते थे, उनका भी तो हक बनता है। आंदोलन जी, वो मेरे अजदाद थे, तो हम तो सारे मुसलमान हो गए हैं, तो आप क्या करें? इससे तुम्हारी आवाज अब क्लियर नहीं आ रही, क्लियरली मतलब। बट मैं समझा नहीं ये मूर्ति पूजक की बात। अच्छा, मैं चलता हूँ यार, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा इस बात का कभी, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, मुझे जरा जाना है। मैं इसका जवाब मैं मेरी आवाज बेहतर है आदित्य? हाँ, तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये था, मैं इसको कंप्लीट ही कर देता हूँ। जब भी हमारे पास पावर आएगी तो वी विल एक्सर्ट अवर क्लेम्स आल्सो, इंक्लूडिंग एट दैट श्राइन। अच्छा आंदोलन जी, वो तो आंदोलन जी देखें, पावर जिसके पास आएगी वो तो यूरोप के पास, इंग्लैंड के पास पावर आई, उन्होंने पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो कब्जा कर लिया, तो उसमें तो कोई बात नहीं है। इंडिया के पास उसके लिए मूर्तियां नहीं चाहिए आपको, उसके लिए सिर्फ पावर चाहिए आपको। मैं आइडियोलॉजी की बात कर रहा था आदित्य जी, मैं आइडियोलॉजी की बात कर रहा था। जो बार बार बात होती है कि केवल अब्राहमिक फेथ, यहाँ पे मतलब कोई नया बनाया नहीं गया था, हमारा तो आ गया था। अच्छा, तो दैट क्लेम मूर्तियां तो मेक्सिको में भी निकली थी, जहाँ पे खुदाई हुई थी, जो आपके नहीं आदित्य, दरअसल बात ये है ना, वो जो मूर्ति पूजा वाले लोगों की बात कर रहे हैं, अहमद सिद्दीकी जो से वो बनी तई जो से कुरैश के थे, तो वो जो मूर्ति पूजा करने वाले लोगों की आप बात कर रहे हैं, वो तो मेरे अजदाद थे। नहीं, आपके जो क्या कहते हैं, हम तो मुसलमान हो गए हैं ना। अब्राहमिक फेथ से पहले सारे ही जो रिलीजन थे भाई, वो जो आइडल वर्शिप करते थे, इसमें कोई वो लोग अब मुसलमान हो गए हैं, तो अब क्या किया जाए? यानी कि वहां पे जो से मूर्ति पूजा नहीं करते थे, वो तो क्रिश्चियन और आपका बड़ा वैलिड, आपका बिल्कुल वैलिड लॉजिक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस समय इस्लाम का आगाज हुआ मिडिल ईस्ट में, उससे पहले कौन सी दो पॉपुलेशन बसती थी मिडिल ईस्ट में? ज्यूज एंड हिंदूज, क्रिश्चियंस, राइट? क्रिश्चियंस की भी पॉपुलेशन बहुत कम थी, मिनिस्क्यूल। मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूँ, की बात कर रहे हैं आप? मैं बात कर रहा हूँ 600 AD के आसपास की, जो कि इस्लामिक हिस्ट्री के रिकॉर्ड से मैं कोट कर रहा हूँ। हाँ जी, तो हिंदूज आप कैसे डिटरमाइन कर रहे हो? हिंदूज करेंगे? अरे अच्छा जी, हाँ, मेरी बात तो हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं, मैं वहां पे केवल अब्राहमिक सिस्टम तो था नहीं, ज्यूज रहते थे, कुछ एक क्रिश्चियन भी रहते थे, लेकिन जो सबसे बड़ा गढ़ था वो तो क्या कहते हैं, आइडल वर्शिपर्स का था, जिनको पेगन बोल लीजिए, हिंदू बोल लीजिए, इस तरीके की आइडियोलॉजी। पेगन्स एंड हिंदूज आर नॉट द सेम थिंग ना? नहीं आदित्य जी, ये आपका ओपिनियन अपनी जगह हो सकता है, मैं अपने तरफ की बात कर रहा हूं। आप हिंदू होने का मतलब जो वेदों में मानते हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं?
जी नहीं, आपका फिर नजरिया बहुत लिमिटेड है आदित्य जी, आपके उस पे बात पे 2 मिनट आप अपना नजरिया रोक लीजिए, है ना। तो नहीं, ये मेरा तो बहुत ही लिमिटेड एक पॉइंट, अब्सर्ड स्टेटमेंट हो गया अरे ना यार देना। आदित्य जी, जितना भी एब्सर्ड स्टेटमेंट हो गया, पर सुनने की मतलब सुन तो लीजिए पहले मैं क्या कह रहा हूँ। Aditya, let him हाँ speak, man. Let him हाँ complete and then he can हाँ, respond. मतलब यू आर इंटरप्टिंग एवरी 10 सेकेंड, No, राइट? no, it's okay, सो Dolan ji. Carry on, हाँ, and then Aditya will respond to you. right. So, when we talk about Mecca, for example, right, it is clearly articulated in Islamic history that there were 360 murtis staying inside that premises. Whenever I make that claim that it was a Hindu place of worship or pagan place of worship for that matter, and somebody took it over, so we need it back. The counter argument given to me that this was built by Abraham prophet, right? So by going by that logic, if you go by, sorry, just allow me, if you go by that logic that it was built by Abraham is Jew, then the entire Middle East is Jew land, isn't it? आंदोलन नहीं, जी मैं क्या इसमें हिंदू लॉजिक का आता कोरिलेशन है? ढूंढ रहा था। हाँ, 2 मिनट रुक जाइए, वो अभी को रिलेशन में ढूंढिए, वो मैं इसीलिए पूछ रहा था। तो इसमें या तो भाई वो क्लेम बनता है तो सबका बनता है। इस्लाम केम इन मच लेटर, ज्यू की ट्राइब्स यहाँ पे बड़ा क्लियरली इस्लामिक हिस्ट्री में आर्टिकुलेटेड है। the first one of the first wars which happened with Islam was with the tribes of Banu Qurayza, which was a Jew tribe, and a large one at that. Then there was next also two wars with the next two Banu something else, and Banu, I don't remember the name right now, but three Jewish tribes were there in right at the center of Saudi, what this modern Saudi Arabia. They were dominating the trade. They were dominating the trade routes. They were all moved out, eliminated. Now, if we talk about history, that who owns that land? I mean, it's either the Jews or the pagans. Wouldn't that be true? नहीं, ये जो एक आर्गुमेंट आती है ना कि हम हिस्ट्री में जाएंगे और देखेंगे कि ये जमीन किसका है, आई डोंट थिंक हम हिस्ट्री को इस तरीके से जज कर सकते हैं। ह्यूमन हिस्ट्री पर जो है आदित्य जी, वो आपकी पूरी बात सही, हिस्ट्री जो है इसमें इंसान जो है पर वो आदित्य जी, आगे से आगे ट्रैवल आदित्य जी, करते रहे ये हैं। नहीं, आप यहाँ पे इस स्पेस में 1 डेढ़ घंटे से हैं डिस्कशन में। ये वाला ऑब्जेक्शन आपने तभी लिया है जब मैंने ये लॉजिक दिया, नहीं तो अभी तो 1 घंटे से हिस्ट्री की बात हो रही थी ना, नहीं, लैंड मैं किसकी है। आंदोलन जी मैंने एक बार भी कहा उससे कि पहले जो तो आपने, जूज हैं, हाँ हाँ, आंदोलन जी नहीं मैंने नहीं, एक बार इसमें भी मैं, कहा कि जो वहां पे जो इसराइल में जूज रहते हैं उनका वहां रहने का हक नहीं है। मैंने तो एक बार भी नहीं कहा। अब वो आ गए हैं, वो उनके बच्चे पैदा हो गए हैं, वो वहां पैदा हुए कौन हैं, तो आप, नहीं, आप इसी को मिस इंटरप्रेट और आनी है, दैट दे आर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ द इंटायर मिडिल ईस्ट, नॉट जस्ट ओरिजिनल तो इजराइल। आंदोलन जी सब यार अफ्रीका मैं से आए हैं इसके ना। अंदर अगर एक आप चीज ऐड करना इफ यू चाहूंगा, बिलीव इट्स द आयरॉनिक साइंटिस्ट वी आदित्य। ऑल केम फ्रॉम अफ्रीका। Aditya, that's fine. You can say everyone came from Africa. Infinity, you have to refresh either your internet connection is. Oh, you're there. Okay, I'll just add you to the stage. Okay, so बात क्या है कि देखो आदित्य, at the end of the day हमें religious context भी देखना पड़ेगा। That is like Jews को अगर आप देखें तो Jews की और Christians की और मुसलमानों की globally इस land के साथ काफ़ी heavy association. And the fact of the matter is that some of the religious monuments and the kind of relevance they have for all three Abrahamic faiths cannot be denied. उनका एक certain influence, चाहे local लोग कल Jews की बजाय मुसलमान अगर यहाँ से चले जाते हैं तो वो reverence तो ख़त्म नहीं होगा। या अगर फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल दें कि कल को a situation comes or emerges कि मक्का के अराउंड जो सिटी में लोग रहते हैं वो सारे नॉन मुस्लिम हो जाएं for some reason. I'm not saying that's going to happen, but if for example there was such a scenario, तो इसका क्या मतलब होगा? The access to Muslims for Hajj around the globe is going to be uh, not still there. The reverence is still going to be there as far as the Muslims are concerned. So I think we have to keep that into account.
that whether it's Jews or Christians or Muslims, they're going to have huge reverence to this land, whether any one of their community at any given time in history are neither in power, control, or present there. Till देखें they शाह exist on earth, शाह it देखें will be there. देखें आप एक एक चीज पहले क्लियर करें। देखिए हम जिस सिस्टम में पहले रहते थे और जिस Hmm. सिस्टम में हम अब रहते हैं, आप Hmm. पहली बात तो ये है कि आप अब नेशन स्टेट के सिस्टम में रहते हो और वहां के इस सिस्टम का जो है रूल जो बेस सिस्टम है वो कंप्लीटली डिफरेंट है जो हिस्टोरिकली जो है ना पहले सिस्टम्स हुआ करते थे जिसमें लोग रहते थे। ठीक है, नहीं ये नहीं आइडिया ऑफ अदित्य, द सॉरी मैं नेशन। कट कर रहा हूँ, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, क्योंकि बात है रिलीजियस आपकी एफिलिएशन की टू अ सर्टेन लैंड, टू अ सर्टेन मॉन्यूमेंट भी आप कह सकते हैं, और वो कभी नेशन स्टेट्स में भी चेंज नहीं होती, एंड वी हैव सीन दैट हाँ, जिस तरह हिंदुओं के भी हैं करतार, ऐसे, रिसेंटली हिंदुओं के रिसेंटली तिब्बत में इंडिया हैं। पाकिस्तान में करतारपुर को देख लेना, ठीक है, बिल्कुल। नहीं चेंज होती, तो वो इट्स अ पॉइंट क्या है, मैं वेरी पॉइंट नहीं समझ वैलिड रहा उससे। आर्गुमेंट। जी जी। बिल्कुल है, मुस्लिम्स के लिए वो रिवर्ट जगह है, वहां मुस्लिम्स जाते हैं, दे प्रे देयर, वहां पे क्रिश्चियंस भी जाते हैं, उनकी भी रिवर्ट जगह है, ट्रैवलर्स दुनिया से आते हैं, दे गो देयर, दे प्रे देयर। वहां पे जो है जूस भी आते हैं, वो जो वॉल है वहां पे आके जो है वो अपनी प्रे करते हैं। ठीक है, जिस जिसके लिए वो जगह हिस्टोरिकली या रिलीजियसली इंपॉर्टेंट है, दे गो देयर, दे वर्शिप। ठीक है, और जो वहां पे रहते हैं नेशन स्टेट के जिस सिस्टम में, वो जो उसके सेट रूल्स हैं उसको जो है ओबे करते हैं। अब हमारे लिए हिंदुओं के लिए माउंट कैलाश इज वेरी रिवर्ड, बट इट्स नॉट अंडर इंडियाज कंट्रोल। तो जो इंडियंस हैं वहां पे जाते हैं परमिशन के साथ में और वहां पे जो है अपनी पूजा करके वापस आते हैं। पर ये अब मैं थोड़ी डिसाइड कर सकता हूँ कि यार मैं चाइना को कह सकते हैं इंडियन कि यार हमें जो है आप जो है माउंट कैलाश में वापस दो, क्योंकि हिस्ट्री में हम यहाँ पे पूजा करते थे। दिस नेशन स्टेट के सिस्टम के अंदर जो है इट्स नॉट योर इमोशन दैट प्लेज द रोल, राइट? जिसके पास वो नेशन स्टेट में जो पार्ट आता है, दे सेट द रूल्स। इसी लॉजिक से आदित्य जी अगर हम बात करें अच्छा, तो इफ आई मे, मैं आंदोलन जी के कुछ जो से उन्होंने पॉइंट्स दिए थे उनको थोड़ा सा आंसर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो जो से वो पॉलिथियस्ट की बात कर रहे हैं आंदोलन जी, उनके जो चिल्ड्रन है, उनके अंदर हम आते हैं, उन कबाइल के जो से औलादे हैं वो हम हैं, हम कुरैश के जो से बुत परस्त थे वो इंक्लूडेड है। अगर आप मदीना के कबाइल की बात करें, बनी औस, बनी खजरज, वो हैं, तो वो तो सब जो से हो गए मुसलमान। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ओनरशिप ऑफ polytheists, यहाँ पे if you want to say that all the polytheists are Hindu, well, let it be. I will accept it for the sake of the argument. लेकिन the people who belong to those lands, their children are alive. We are their children. And we are Muslims. Secondly, आंसर आपने आप बात की रहते कि कहाँ वहाँ पे पे हैं? जूस आए। जी, मैं पाकिस्तान में इस वक्त रिहाइश पसीर हूँ, तो एंड आई एम क्वाइट जैसे जैसे इसराइल कंफर्टेबल। ने जैसे जैसे इसराइलियों ने कब्जा कर रखा है इसराइल का, वैसे आपने कब्जा कर रखा है पाकिस्तान में, आप ये कहना चाह रहे हैं, पर हैं आप सऊदी के। नहीं सर, नहीं सर, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। मैं सऊदी अरेबिया में अगर जाना आई एम चाहूँगा जस्ट मुझे जाने एक्सटेंडिंग द देगा, लॉजिक, हाँ, और जस्ट मुझे एक्सटेंडिंग द लॉजिक, हाँ। the logic doesn't fit here ना। बात ये है कि I'm not a citizen of Hijaz. Hijaz as a country does not exist anymore. Nor am I a citizen of Saudi Arabia. I am a citizen of Pakistan. For the past 9 generations, which I remember in my brain, on the tip of my tongue, we have been living in the region of Kashmir and Punjab. Before that, that would make about 400 years. Before that, my ancestors were in Bukhara. And before So that, they were in the Iraq. limited point I was meaning, the limited point I'm making, my friend, here is, so let's say the native populace of Pakistan would tomorrow ask you that you are here from 200 years. Now go back to where you belong. What Well, would you I say? am the native Is populace the of is the Pakistan. is the is the I same would say, question I Palestinian, would say, is the same question Palestinians are asking the Israelis? here's the thing. Actually,
I would say that I am the native population of the land, at least in the That's modern that's what that's in the what the modern Israel context that's of what Israel. the Israelis are saying. Yes, but there's a little bit of a problem there ना. पहली तो बात ये है, uh, in the modern times when we actually have laws and international understanding of things, that things cannot go back to time memorandum. हम 5,000 साल पहले अगर जाएंगे तो फिर हम 10,000 साल पहले क्यों नहीं चले जाएंगे? हम वही हजरत तो कह रहा हूँ, तो इब्राहिम फिर के 50 नहीं नहीं साल हम पहले क्यों हजरत जाएंगे? इब्राहिम के दौर में क्यों जाए? नहीं, there's a reasoning to it ना. People, at least in the modern day and age, have set a little bit of a Yeah, standard of I think, about three to Sid, four I've come to the generations. conclusion in regards to this specifically, that's a very, very, very sentimental statement, and Jews are not going anywhere, just like the Muslims are not going anywhere from that land. No, they should not, And nah. But that's not the point. The yeah, but if your Israel-Palestinian purpose is problem to is bring what? some kind of peace or some kind of resolution, that is too much to expect. That's not going to happen anytime soon. Then you have to Shahji's agree peace to the does fact not that this come is by an begging. ongoing conflict and there is no end to it. Actually, Shahji, the इसमें solution is जनाब to इसको थोड़ा सा मैं इसीलिए अच्छा वापस अच्छा क्षमा करिएगा मैं अंदोल जी एक सेकंड like I think we are entering the last quarter of the live session, and we have a new speaker, Infinity. I would like to have your opinion and thoughts on the topic, and I would advise Shaji to work on his punctuation and formatting. Yeah, G Infinity. Hi, everyone. I'm sorry I joined a bit late, but a very interesting conversation going on. Unfortunately, there's no denying, uh, powerful, whenever there's power, आप किसी भी मुल्क को, किसी भी geographical area को आप एक तो कहते हैं ना कैप्चर कर लेते हैं, तो उसी की सुनी जाती है जो पावरफुल होता है। चाहे आप अपने मुस्लिम एरा में चले जाएं, when we were powerful, we conquered a lot of area. हमने बहुत अच्छा ठीक-ठाक एरिया को हमने कवर किया। Whether through might, whether through persuasion, हमने लोगों को मुस्लिम किया। जो भी आप कह लें उसको, बहुत से हमने worshipping areas को जो लोगों की जो कहते हैं ना institutions थे, that places of worship, we converted them into mosques, whether forcefully or whether persuading people into doing that. And now when our own places are being converted into places of, whether it's for Jews or whether it's for Christians, it hurts, of course. But the big reality really always will be, जो ताकतवर होएगा वो उसी की चलेगी, जिस भी era में। it does not Unfortunately, it's यही है rule हर जगह। चाहे अब आप कोई भी geopolitics ले लें, लेकिन as far as migration is concerned, दुनिया में बहुत सी nations ने migrate किया है दुनिया भर में हर जगह पे। My roots are also from Iran, and some even say कि ईरान से भी पहले थे हमारे अगर हम फैमिली ट्री अपना निकालें। I can't go back there. That was like 5, 6, 7 generations back when my ancestors were from there. कोई कहते हैं जी कि अलेक्जेंडर की आर्मी से के साथ आए थे, whatever it is. All I know is where I was born in, where I was raised, and that's where I relate to, right? और अगर मेरी कोई affiliation है तो मेरी affiliation उसी region से है where I was brought up, मेरी attachment वहीं से है। As far as Palestinians are concerned, we can't just argue कि हाँ जी वो चूंकि मुसलमानों का था इतने अरसे तक, तो मुसलमानों को राइट है उस पे करने का। The best thing would be to allow the Palestinians some place where they can raise their generations peacefully without being constantly harassed by the Israeli army. That's all we all need to work on right now. उन्हें भी कोई एरिया दें, और ये बात इजरायलीज को बहुत इम्पोर्टेंट सोचने की है कि they went through this. They went through all this homelessness throughout the world.
they were just scattered all over the places. हर जगह से निकाले जाते थे, यूरोप से निकाले जाते थे. कितनी उनको उनका genocide हुआ है. Like the entire world sentiments are with them, and for them to do all of this to a very small portion of बहुत छोटे से land रह गया Palestine के पास 25 miles I believe, 25 kilometers. तो ये कि उन्हें भी वो ख्याल करना चाहिए कि वो हरास ना करें इतना लोग पैलेस्टीनियंस को कि वो तंग आके हर कुछ अरसे के बाद यूज अप हों बाय अदर नेशंस. अब हमास जो है, whatever their reality is, whether it's the US supporting them and playing the game, whether it's Iran doing it, whether whoever is doing it, at the end of the day, उसका जो कहते हैं ना खमियाजा वो भुगत रही है वो वहाँ के बच्चे छोटे-छोटे. Every single, I mean, I'm hating going to social media now because every time I just, open up my phone, I see dead children and it hurts. It hurts like anything. So let's just focus on how can this issue be resolved? What can be done? Like whether it's the Arabs who can do this, I believe it's the Arabs' hand. It's in the Arabs' hands. They are the ones who should have resolved this long time ago. This entire issue is because of the Arabs. कभी भी Arabs ने कोशिश नहीं की कि Palestine issue resolve हुए. Never ever. And I believe it's still in their hands to resolve this once and for all. That's all I believe in, right? And this is what I really want right now. I don't care about whatever happened in the past में क्या हुआ, No, किसने but किसको how do क्या you किया. think the Arabs can resolve it? Sorry? How do you believe that Arabs can resolve it, and like what will they have to do to resolve it? And are they the only party whose hands it's in? Except for Jordan and Egypt, जिन्होंने openly condemn किया है in actions को, and they are the ones who have also in the past, allowed refugees in their land. बाकी और किसी अरब कंट्री ने openly तो register भी नहीं करा जो protest है, let alone, open dialogue with Israel and, come up with some sort of solution for this because they never wanted that. And I don't think they're still interested in it. So problem ये है कि हमारी अपने Arabs ऐसे हैं तो I don't, क्या हो सकता है, बात क्यों नहीं की जा सकती? Come to the table. There's always a peaceful solution to, at least give those people that even 25 miles का area ही अगर देना है उनको, उसमें भी peacefully रह सकते हैं वो. और दूसरी बात ये है कि Hamas has to go. Hamas, I don't think they even speak for their people. Every time Hamas does something, the people of Palestine, they pay for it really badly. Like उनके proper genocide session शुरू हो जाता है हर बार. Every single time. Unity, you अच्छा आपके जहन सिड में एक इसका सेकंड solution ये चलो तुम अच्छा सिड एक सेकंड में एक चीज सिर्फ ऐड कर देता हूँ कि इन्फिनिटी ने एक चीज कही कि लाइक आई डोंट नो व्हाई द अरब्स वुड नॉट कंडेम इट because they can't, they are the biggest beneficiaries of the system, not the system of the conflict in Palestine, but the western enabled whatever system that you call it, right? It's ये हाउस ऑफ साउद या ये जो आपके मिडल ईस्ट में जितनी भी जो हैं ये क्राउन प्रिंस ऑफ यूएई और जितने भी आपके जो रॉयल्स हैं ये कोई अपने आप ये कहीं से जो है हमारे हिंदी में कहते हैं जिसे प्रकट हुए हैं. ये जमीन किसके पास थी 1920s तक या 1910s 1930s तक? ये इनको किसने एस्टैब्लिश किया? यहाँ पे जो ऑयल रिच रीजन था यहाँ पे इनको कौन लेके आया? यहाँ पे क्यों नहीं डेमोक्रेसी आई? उसका उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बिकॉज द क्रिएटर्स ऑफ दीज कंट्रीज नेवर वांटेड डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉर दिस लैंड. who created this system, who created these क्या कहते हैं ये जो रॉयल्स इनको बनाने वाला कौन था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. या हाउस ऑफ साउद कहाँ से आया है भाई? कोई बता सकता है? सऊदी अरेबिया का नाम सऊदी अरेबिया क्यों है? हाउस ऑफ साउद कौन है? कोई हिस्टोरिकली इनका कोई जो है इस लैंड पे कोई रूल करने का कहीं लिखा हुआ है कि दे आर सपोज टू रूल दिस लैंड किसी पेपर पे? नो.
because House of South was created by United States of America. They are the system. They will never condemn it because they are the beneficiaries of the system. या आदित्य, एक मुझे प्रॉब्लम होता है जब भी आर्ग्यूमेंट या बहुत पास्ट में चला जाए या बहुत फ्यूचर में चला जाए, वी शुड स्टिक टू द प्रेजेंट, और उसमें अगर हम डिबेट करें, क्योंकि पास्ट का हमें पता है बट वी कांट लाइक क्राई ओवर इट। नहीं फ्यूचर नहीं वी फुरकान भाई, डोंट नो, दिस वाज क्योंकि इम्पोर्टेंट बिकॉज वी दिस इज, बिलीव कि these आई are अंडरस्टैंड, independent, these are independent nations, they are not। बट करंट ये पेट्रो सिचुएशन डॉलर और कहाँ से उनकी, आया नहीं है? नहीं नहीं नहीं, करंट सिचुएशन एंड करंट अलाइनमेंट्स आर अ बिट डिफरेंट, I would phrase it that way. और क्योंकि आंदोलन was going into, or आंदोलन, or was it you? In terms of Israel, it was you going into the future. कि अगर अमेरिका नहीं रहता तो what would happen to Israel? उसकी back support is वो. And आंदोलन was at that time going into the past. मेरा ये कहना है कि like have the discussion in the present. प्रेजेंटली So कहाँ can अलाइन I? कर रही हैं ये जो ऑयल रिच कंट्रीज हैं, और वो क्यों कर रही हैं, उस पे अगर थोड़ी सी बात हो जाए। फरकान भाई, जी can I एक ask you a question? आप मुझे बताएं कि जब उसके अंदर रिलीजियस एंगल यूज होगा तो आपको हिस्ट्री में तो जाना ही पड़ेगा। हाउ यू गोइंग टू अवॉइड दैट एंड हैव दिस कन्वर्सेशन? मैं थोड़ा अटेम्प्ट करूं जी आंदोलन जी, अगर आप आप? कर लें। अच्छा देखिए, अच्छा इस बार आप देखिए, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये काफी सालों से चलता चला आ रहा है, ये नया कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, right? It is not something which has emerged in the last couple of years or something like that. This is constantly going on. But, just see how dangerous this game has become. And not dangerous for anybody else, dangerous for Muslim community in general. इस बार जो गेमिंग हो रही है, गेमिंग आप समझते हैं ना, जो जियोपॉलिटिकल गेमिंग जिसको बोलते हैं, अगर आप स्टेटमेंट्स देखिए स्टेट्स के, और यहां पे मैं 4 स्टेट्स की बात कर रहा हूं, इंडिया की, यूएस की, यूके की और फ्रांस की। इन लोगों ने जो नया गेमिंग टेस्ट करा है अभी पिछले 15 दिन में, इस तरीके के स्टेटमेंट्स कभी पहले नहीं आए। इस पर मैं आऊंगा क्या गेमिंग डेंजरस क्यों है मुस्लिम्स के लिए। आप अगर पैलेस्टाइन को इनकरेज कर रहे हो नॉन को एक्सिस्टेंस पे, now there is a reasonable number of Muslim population across the globe in all countries, and look at the social media. If you are not ready to coexist where you are in majority or where you intend to be in majority, how would that narrative flow in, let's say, a UK, in a France, in US, in Canada, in India, in all the other places of the world? I mean, इसको जरा थोड़ा सा सोच के देखिए। ये जो अरब ममालिक या ईरान या सऊदी, जिसका भी ये जो गेम चल रहा है, these are sitting very comfortably. Currently the major player is Qatar, right? आंदोलन जी, आपका ये जवाब ही गलत है। को एग्जिस्ट आदित्य जी, आदित्य जी, जेल एक में, सेकंड, इन अ जेल। आदित्य जी, एक सेकंड, आप मेरे ख्याल से उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक करना चाहता हूँ आंदोलन जी, छोटी सी चीज, एक बार खत्म कर रहा हूँ मैं अपने 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। पहले पूरी बात खत्म करने दो। आप लोग क्या करते हो जी आंदोलन जी? हाँ जी, तो मैं केवल रिएक्शन ये देखना चाहूंगा। लेट्स से टुमारो इजराइल डिसाइड्स टू टेक आउट द हमास लीडरशिप विद इन द स्टेट ऑफ कतर, 2 मिसाइलें देल के कतर के अंदर डाल देता है, आपको क्या लगता है सिनारियो क्या होगा? मुझे लगता है डेवस्टेशन ऑफ कोर्स। लेकिन मैं एक बात, आपकी जो बिगिनिंग से आप कन्वर्स कर रहे थे उसके अंदर यू मेड अ स्टेटमेंट, मुस्लिम्स एंड ज्यूज हैव ऑलवेज बीन एट वॉर। दैट्स एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट। इफ वी गो, No, I never made that. I never made that statement, but I made that statement कि Middle East में, the first wars between Muslims and Jews happened, right? That was the first set of wars. So you can say it just like other communities. One of the conflict was that, but we can agree. और उससे पहले but एक second, it was not the first war. The only reason I was making that point is to establish that Jews existed there since a very, very long time. Not to say that, who was fighting whom. The point I was trying to make is Jew existed there. Yeah.
So Medusa, you were saying आंदोलन जी something? मुझे मुझे मैं आपसे थोड़ा सा इसके बारे में कन्वर्स करना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि मुसलमान जो उनसे वो दूसरी जगहों पे भी माइनॉरिटीज़ हैं और यहाँ पे जो उनसे आप दरअसल पॉइंट जो इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, इस आपने जो भी बात की है उससे वो एग्जैक्ट पॉइंट आप क्या इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं? मुझे आपकी सारी एग्जैक्ट बात पॉइंट साहब मैं हाँ एग्जैक्ट पॉइंट मैं साहब ये स्टैब्लिश करना चाह रहा हूं कि जिस तरह से क्या कहते हैं इंडिया में मुस्लिम को एग्जिस्ट करते हैं, यूएस में करते हैं, उस तरह से पैलेस्टाइन और इसराइल में भी कर सकते हैं, उस तरह से मिडिल ईस्ट में बाकी माइनॉरिटी भी करनी चाहिए। इसमें यह सवाल अगर एक तरफा ही पूछा जाएगा कि हम तो को एग्जिस्ट मतलब हमको मेजॉरिटी क्रिश्चियन पॉपुलेशन या हिंदू पॉपुलेशन या बुद्धिस्ट पॉपुलेशन को एग्जिस्ट करने का अधिकार दें, लेकिन हम रेडी नहीं होंगे जहां पे हमारा कंट्रोल रहेगा, तो ये क्वेश्चन आपको फेस करना पड़ेगा ग्लोबल लेवल पे। इसके इशारे मैं कह रहा था चालू हो गए इन 4 कंट्रीज में इस बार के स्टेटमेंट। ये जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसमें आप स्टेट स्टेटमेंट्स देखिए, पब्लिक का नहीं, स्टेट स्टेटमेंट दैट गेमिंग हैज स्टार्टेड। देखिए आंदोलन जी, पहली बात तो जो वेस्ट बैंक है नहीं, और उनको जो एलैबोरेट करने पैलेस्टाइन और गाजा चार है, मुल्कों की इन्होंने बात की है ना, उनको एलैबोरेट करने देते हैं। आपने 4 मुल्कों नहीं की वो बातें की है, सिर्फ एक एलैबोरेट ऑन एंटी दैट मुस्लिम पॉइंट। स्टेटमेंट। आई डोंट थिंक No, I don't think it's an anti-Muslim statement at all. He's absolutely correct in this way, and I'm reading it in the same way कि ये एक outrightly Jewish paper के अंदर पहली दफा statements in 4 countries से आ रही हैं. That's the point he made, and I don't think for instance पहले दिन वहाँ बाइडन चला जाता है, अगले दिन सुनक आ जाता है. Everything in the media, the way it's being depicted, it is very different from how it used to be. It's अगर आप official stance देखें तो everyone is with Israel. Nobody is basically stating that Hamas carried out a terrorist attack, and what Israel is doing is incorrect as well. They're stopping halfway. जितनी ज़्यादातर आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नज़र आ रही हैं, चाहे वो ऑपोजिशन पार्टीज़ की भी हों, दे स्टैंड विद इसराइल. And they are basically stating that because of defense reasons or whatever, Israel has absolutely every right to carry out what they're doing. And but these that's statements are only coming from the west के yeah, अलावा that's exactly what Andolan said. He mentioned the 4 countries. He said हाँ United तो States, Israel France. is a So creation of the how west. is he being anti-Muslim? I don't understand. Israel is a creation of the west, और वेस्ट को जो है सॉरी अमेरिका के लिए बारे में तो स्पेशली कहते हैं कि Israel is the 51st state of America, of the United States of America. Nobody is denying that, भाई Aditya. I उनका खुद don't. का स्टेट है यार वो, तो why do you think they will will not take their side? Because last time, every time, and each time, at least in our lifetime, when these kind of situations have developed, it's been pretty balanced from these 4 countries. वो जब बात करते थे, ठीक है, जिस तरीके से हमारे लाइफ टाइम के अंदर ही था ना, even though we were much younger at the time, जब Yasser Arafat was like part and parcel of majority of the negotiations and conversations which took place. One of the biggest contrasts which you witnessed this time round is that जब Biden American president Israel को visit करता है, तो उसके बाद they don't see anyone from the Palestinian community at all. On top of that, अगर आप देखो तो Jordan और फिर Saudi Arabia both, by the way, condemnation दो तरह की हो सकती है. Condemnation, one kind of condemnation or taking a stand is basically a statement stating कि हम इस चीज़ के against. Saudi Arabia has been relatively quiet, but both Saudi Arabia and Jordan refused to meet Biden when he requested for a meeting. That in itself is a huge shift. वरना ये कभी हो सकता था आज से साल पहले भी कि American president request करे for a meeting and that meeting is not taken. I think this is just optics. I think this is just optics, nothing more than that. Please stop आदित्य reading जी, too much into it. ये ऑप्टिक्स नहीं है, ये ऑप्टिक्स नहीं है, क्या हो रहा है वो ये तो वर्ड गेमिंग है. में आके इसको नहीं मुझे बताना.
हाँ, मैं बस एक लाइन इसमें ऐड कर दूं आदित्य जी, जो आप मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा कुछ प्री कंसीव्ड नोशन से आप इस स्टेटमेंट्स और डिस्कशन को ले रहे हो। मेरा लिमिटेड पॉइंट ये है, इन 4 कंट्रीज का स्टैंड ड्रास्टिकली चेंज हुआ है एंड दे आर टेस्टिंग इट आउट। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दे आर गेमिंग इट राइट नाउ एज वी मैं स्पीक। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करता है? एंड देयर इज योर आंसर। क्या आप इंग्लैंड जो है टू आदित्य जी, स्टेट सॉल्यूशन को आदित्य जी, सपोर्ट करता है? डू दे इवन आदित्य जी, आप रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन? सर सर एंड यू विल सर गेट योर मैं आंसर। दूसरा पॉइंट, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, आप दूसरी चीज समझ रहे हैं। आप एक काम करिए, इससे पहले जब भी ये यहाँ पे मेजर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उस समय के स्टेट स्टेटमेंट्स उठाइए और अभी के स्टेट स्टेटमेंट से कंपेयर करिए। ये जो आप अभी देख रहे हैं, 4 स्टेट्स में बार बार रिपीट करके नाम ले रहा हूं, इंडिया, यूएस, फ्रांस एंड यूके, they have gamed a new stance. They are testing it out. If it tests positively in their, uh, democratic basis, Andolan, it's you gonna be mentioned extended India far. in that. How India? Because India, Yeah, Jay India Shankar stance has is still been the very, same. very clear, as far as I know, that India believes in the two-state solution. नहीं, ये तो देखिए, ये तो इससे तो अभी कोई नहीं पीछे हट रहा है टू स्टेट सोल्यूशन से। लेकिन अगर आप स्टैंसेस देखिए, स्टेटमेंट्स मैं देखिए, आपको दो बताऊं कसर क्या है हाँ, उसका। व्हाई आई कैन वेरी क्लियरली स्टेट के यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूके ऑन पार्टी वाइज और इन अ स्पील ऑफ वर्ड्स माइट बेसिकली स्टेट के वो टू स्टेट सोल्यूशन को भी कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन द मेन डिफरेंस इज इजराइल का कैपिटल जेरूसलम को outrightly on paper only 3 countries have basically accepted. One is United States, one is United Kingdom, and the other is France. तो उसके मैं आपको अलावा वही बता रहा हूँ बाकी लोगों ने कि इसकी कोई ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नहीं दी। ऑन टॉप ऑफ मैं पेलेस्टाइन दैट, भी अंडर ट्रम्प किया है अरे ये। सर, आप हाँ आप ये आप ये ट्रम्प के पॉइंट अंदर। को समझिए, आप पॉइंट को समझिए, ये जो हुआ है वो क्यों हुआ है। ये स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है पोजीशनिंग की। ये आई आज से डोंट थिंक देयर 5, इज एनी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। अरे आई आदित्य जी, डोंट सी। सुनिए तो आप इस चीज की, आप उसको देखना नहीं चाहते, वो एक अलग बात है, लेकिन बड़ा क्लियरली एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है और बड़ा मेजर शिफ्ट है। आपकी जो बैलेंस्ड थे वो वन साइडेड हो रहे हैं, जो वन साइडेड थे वो बैलेंस्ड हो रहे हैं। जो पैलेस्टीन के फेवर में वन साइडेड लोग थे, सऊदी और यूएई, यूएई हैज क्लियरली टेकन अ स्टैंड। सऊदी ने इनिशियल स्टेटमेंट के आने के बाद ठंडा बैठा हुआ किनारे, कुछ नहीं कर रहा है। ये एक गेमिंग हो रही है और ये गेमिंग मुस्लिम उम्मा के लिए बहुत फेवरेबल नहीं हो रही है इस समय। अच्छा, so you're considering India to be part of it, right? यस, अ वेरी क्लियर फिर मेरा अनइक्विवोकल यहाँ पे स्टेटमेंट। क्वेश्चन है, अगर हम रशिया को देखते हैं और चाइना को देखते हैं और उनके साथ अभी इंडिया को recent टाइम्स में देखते हैं, तो wouldn't that be going against them, and that would तो be a huge shift from the current scenario. You realize that? the question you have to ask yourself, and the question Muslim Ummah has to ask themselves, where they would like to settle, in China and Russia or in Western countries, because life will start becoming more difficult in Western countries. चाइना रशिया में जो बचे कुचे हैं वो बचे कुचे हैं, मेरा वहां पे कोई जा क्वेश्चन नहीं यहाँ रहा। पे आप समझे नहीं। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि इंडिया जो है आधे आप ये किन बेसिस पे कह रहे हैं कि देयर स्टांस इज विद यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम? आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड टू नो वेयर यू कम टू दैट कंक्लूजन, let क्योंकि me, अभी तक हाँ, जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं तो वो तो बहुत रशियन सिमिलर आ रही हैं। दी मैं आपको फिर बताता हूँ। आप अभी भी इसमें स्टेट ढूंढ रहे हैं। मैं आपको जो शिफ्ट बता रहा हूँ वो शिफ्ट बता रहा हूँ बड़ा क्लियरली आइडियोलॉजिकल लाइंस पे बन रहा है। देखिए उसका इंडिकेटर क्या है इंडिया के हवाले से? बाकी 3 कंट्रीज का मैं एग्री करता हूँ उससे। हाँ, इंडिया में ने भी सिमिलर स्टैंस लिया है, जो कि लगभग यूके ने लिया, और ये भी टेस्टिंग चल रही है। ये यूके भी टेस्ट कर रहा है, यूएस भी टेस्ट कर रहा है। लेकिन जैसे आपको मेरी बात खत्म हो जाने इन दीजिए। बोलन जी, मेरा क्वेश्चन नहीं आप लास्ट समझ पॉइंट, रहे। लास्ट पॉइंट, जी आप जी इसके बाद क्वेश्चन, ये अभी
ये जो गेमिंग है ये टेस्ट फेज में है, राइट। ये जैसे ही डेमोग्राफी ने इस पे मोहर लगा दी, उसके बाद जो रिपरकशंस होंगे वो मच ब्रॉडर होंगे। नहीं देखे ना आंदोलन जी, ना तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर सुनक की तरह और बाइडन की तरह इसराइल किया, ना ही आपके फॉरेन ऑफिस से या आपके प्राइम मिनिस्टर से या आपके किसी ऑफिशियल से इस टाइप का स्टेटमेंट आया। Just like Russia and China, they condemned the terrorist attack by Hamas and they basically stated कि peace की तरफ जाना चाहिए, and Jay Shankar went out of his way and so did Modi to clarify that we believe in the two-state solution, and on top of आपने that they also reiterated, बात सुन लीजिए ना, कि वो पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं, पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करते हैं और उनके पैसे वो रेज कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे, उतने नहीं कर रहे, रख रहे, लेकिन उनके ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज के लिए हम तो पैसे ज्यादा बढ़ा रहे हैं, वी इंक्रीज द बजट फॉर दैट। तो आंदोलन जी एक स्मॉल स्टेटमेंट, आई डोंट मेक लॉन्ग स्टेटमेंट्स, यू नो दैट। आई वुड गिव वन लाइनर कि अगर डेमोग्राफिक चेंज इज अ बिग इशू, जो कि आपके आर्गुमेंट में मुझे लग रहा है और मुझे पता है, वी हैव हैड सर्टेन डिस्कशंस, you won't be having head of states like Rishi Sunak, ठीक है, वो भी cautious हो सकते थे when bringing in immigrants, and they're still not very cautious. They are bringing in immigrants from Pakistan, they're bringing in immigrants from India, इनकी import markets हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये डेमोग्राफिक चेंज वाला जो पॉइंट है ना, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे, इफ आई अंडरस्टूड इट करेक्टली, उसे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा, जी। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे ख्याल से शाजी जी, आप पीएम मोदी के जो पहले 2 ट्वीट है वो बड़ा क्लियरली पढ़ लीजिए। हाँ, बीजेपी ही पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, जिस समय उस समय पैलेस्टाइन और इजराइल में हीटअप हुआ, और इस समय का स्टेटमेंट मोदी का जो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट आया वो पढ़ लीजिए। इट इज एग्जैक्टली ऑन द लाइन ऑफ बाइडेन, फ्रांस एंड यूके, एग्जैक्टली। मैं पढ़ के भी आपको सुना दूंगा, मैं उसको निकाल ले रहा हूँ। तो बेसिकली उन्होंने यही कहा था कि ये वी कंडेम हमास अटैक एंड इजराइल हैज फुल राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, सो वी आर विद, तो ये 2 स्टेटमेंट थे, राइट। ये एग्जैक्टली जो यूएस ने स्टेटमेंट दिया था, यूके ने स्टेटमेंट दिया था, फ्रांस ने स्टेटमेंट दिया था, एग्जैक्ट सिमिलर स्टेटमेंट ये आया था। उसके बाद पॉलिसी लेवल पे एक स्टेटमेंट आया कि हाँ, वी आर इन फॉर अ 2 नेशन दिस थिंग, जो कि स्टेटमेंट यूके ने भी दिया, जो कि स्टेटमेंट यूएस ने भी दिया कि हम 2 नेशन के साथ हैं, हम पैलेस्टाइन की मदद कर रहे हैं। बाइडेन ने नहीं करते 2 नेशन। एक सेकंड दोस्त आदित्य जी, तो ये जो पैसे यूके भी दे रहा है पैलेस्टीनियंस को, पैसे यूएस भी दे रहा है, पैसे हम लोग भी देंगे, राइट। वो देखें, जहां तक अमेरिकन की बात है, वहां पे तो डिसाइड हो गया कि उन्होंने फ्रीज करना है, एंड यूनाइटेड किंगडम इज गोइंग द सेम रूट। मेरे ख्याल है आप इंटरनल पॉलिटिक्स फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन एज फार एज पैलेस्टीनियन फंडिंग इज कंसर्न, दैट्स कमिंग टू अ हॉल्ट। अच्छा, ठीक है, मे बी, पर अभी काफी पैसा गया था यूएस से, पर यूएस ने कल ही तो सैंक्शन करा काफी पैसा पैलेस्टीनियन $100 मिलियन किए हैं डेवलपमेंट और उन सब के लिए। अभी कल ही तो दैट इज प्री, और उसी के बाद ही ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ है। दे आर टॉकिंग अबाउट प्लीज, यही तो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें मैं एक बार इनका क्लैरिफिकेशन और दे दूं इनका। तो ये जो आप कह रहे थे वो डेमोग्राफिक में शब्द गलत यूज कर गया, चूंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, ये जो स्टैंस इन्होंने लिया है, इसको अभी ये इसका मूड ऑफ द नेशन टेस्ट करेंगे। जैसे इंडिया ने ये स्टैंड एक एग्रेसिव लिया, इससे डेमोक्रेटिक मतलब वो जो जैसे बीजेपी पार्टी है रूल में, राइट, वो टेस्ट करेगी कि इस अप्रोच से हमें फायदा मिलेगा या नुकसान। यूएस सेम टेस्ट करेगी कि इससे हमें फायदा मिलेगा या नुकसान इंटरनली डेमोग्राफी में अपनी। ये नहीं टेस्ट कर रहे कि हमको मुस्लिम्स को बाहर निकाल देना या अंदर लेना है। वो ऑलरेडी वन स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, वो क्या टेस्ट करेंगे?
एक सेकंड आदित्य जी, आप हम बात कर रहे हैं जापान Yeah, की, आप पहुंच रहे हो। internally, so I agree with the overall comments which Andolan is making. Kyunki this is how it is. This is being gauged. How is the normal populace going to react? That's why protests and various things, and that is not just in these countries. This is like occurring in United States and across Europe. उन कंट्रीज को हम Yeah. ईयू की एक दो के अलावा भूल जाते हैं but this is occurring across Europe from Denmark to Norway, Sweden, Germany, all these places there are people out there now speaking in terms of that और बड़े बड़े protest हो रहे हैं different जगहों में लंदन और डाउनिंग स्ट्रीट और वॉशिंगटन डीसी के बाहर तो एक कंसिस्टेंट जमघटा इकट्ठा हुआ है दिस इज वेरी रेमिनिसेंट ऑफ द इराक वॉर एंड यूर राइट वो इंटरनल पॉलिटिक्स को जज कर रहे हैं इंटरनल अपने पॉपुलस की गेज भी टेस्ट कर रहे हैं कम्युनिटीज भी रहती हैं दोनों जीविश और इवेंजेलिकल इन्फ्लुएंस को भी गेज किया जा रहा है क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के between and their populace. Lekin how is that occurring in India? That is what I'm more तो interested in. Yeah, like Andolan, just a moment. Shaji, I think we only have 5 minutes left. We should be going towards the closing statements, and I think this is a very good topic. जो कि अभी आपने क्वेश्चन पूछा. I think we should go towards the closing statements. If you agree, I would ask the panelists to give the Yeah, closing yeah, statement. we can Shaji. go for the closing statements. लेकिन पहले आंदोलन जी को जवाब देने दें फिर उसके बाद ठीक है. एसएस खान को बोल देने दें he's here and जी then we जी go to the closing statement. जी जी तो बिल्कुल. जी अंदोलन. तो मेरा जो फ्लो ऑफ इवेंट था वो ये है कि ये 4 कंट्रीज ने इस बार पहले से ज्यादा एंटी पैलेस्टाइन, एंटी हमास, एंटी पैलेस्टाइन एंड इन एक्सटेंशन एंटी मुस्लिम स्टैंस लिया है और उसका रिपरकशन वो इंटरनल डेमोग्राफिक पे टेस्ट करके इसको एज अ स्ट्रेटेजिक वे फॉरवर्ड बना सकते हैं अगर डेमोग्राफी सपोर्ट करेगी तो। ये मैं कह रहा हूं, पहले इतना शार्प नहीं लेते थे ये लोग, ये 4 कंट्रीज, इन्होंने इस बार स्पेसिफिकली शार्पर ओपिनियंस लिए हैं। ठीक है. Thank you, Andolan. SS Khan, welcome. And agree. I जी जी. completely agree with that notion. Or SS Khan, let's see what happens. SS Khan, आपसे question ये है. I'm just going to recap. We discussed if this is a geopolitical issue or a religious one, and or is it both at play? और कल हम फिर एक करेंगे इवेंट सैटरडे को थोड़ा अर्लियर रखेंगे एग्जैक्टली ऑन दिस टॉपिक but uske andar we can you'll get an opportunity to speak more. We'll set the time after this conversation has ended. आप बोले हैं सस्कान. जी शाह जी, चूंकि कॉन्वर्सेशन एंडिंग की तरफ है तो बस आपको क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि ये जियोपॉलिटिकल है या रिलीजियस इशू है। तो रिलीजियस तो हम अगर हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उसको हम जो है ना नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन करेंटली अगर हम देखें तो वो ये पॉलिटिकल इशू ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, उसकी डिटेल में अगर आप जाते हैं तो आप अगर देखें रशिया यूक्रेन वॉर वहाँ पे हो रही है अभी, कुछ यूएस की जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसकी भी कुछ बुरे हालात हैं। ठीक है, और वहाँ से नज़रें हटाने के लिए और वहाँ से जो है ना उसको ज़रा लोगों की नज़रों से ओझल रखने के लिए यहाँ पे भी एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और उसको जो है ना खूब फ्यूल अप किया जा रहा है। और इसके अलावा जो है मतलब ये समझें कि रशिया और यूएस जो है ना वो दोनों यहाँ पे प्ले कर रहे हैं मेनली, चूँकि जो है ना और चाइना उनके साथ है। तो वह फिलहाल तो बस यही आपको क्वेश्चन का आंसर ये है कि करंटली ये जियोपॉलिटिकल है और हिस्टोरिकली देखें तो रिलीजियस इशू वहाँ पे एविडेंट है। सही, तो what are your final comments in regards to this? What exactly has happened? How do you sum this up? जी, am I audible? Yes, you are.
अच्छा, सम अप करना तो चले वो करते हैं, लेकिन एक फैक्ट, कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताना चाह रहा था कि अभी यूएस ने जो प्लेज किया है $10 करोड़ या $100 मिलियन आप कहें, तो उसको कांग्रेस ने जो है ना वो रिजेक्ट किया है। और उन्होंने बताया ये है कि हम टेररिस्ट को हम फंड क्यों करें ह्यूमैनिटेरियन एड्स के ऊपर। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि इंटायर अपार्ट फ्रॉम द हमास, वहाँ की जो गजा स्ट्रिप की जो इंटायर पॉपुलेशन है वो उसको जो है ना इन्होंने टेररिस्ट कैसे बना दिया है। और इसके अलावा जो है मिस्र के बॉर्डर के ऊपर, रफा बॉर्डर के ऊपर ओनली 20 जो है ना वो कंटेनर बोले या ट्रक बोले वो खड़े हैं, उनको ही जाने नहीं दे रहे। ठीक है, कई दिनों से खड़े हुए हैं वहाँ पे। तो सिचुएशन तो ये है कि आप कुछ क्या करेंगे कि और एड्स मिलेंगे गजा स्ट्रिप के ऊपर जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, हमास को तो छोड़ दें, उनको तो टेररिस्ट वैसे ही बना दिए। लेकिन और दूसरी तरफ से जो है ना $40 बिलियन जो है ना ईयरली इसराइल को जो है ना वो देता है डिफेंस एड के तौर के ऊपर यूएस। और इसके अलावा भी अभी जो एड्स उन्हें मिल रहे हैं, और यहाँ पे जो है गजा स्ट्रिप के ऊपर जो अभी ये क्राइसिस चल रहा है उसका जो है ना बस सिर्फ बातों में ही हो रहा है। तो बस यही है जो जी, थैंक यू। मतलब अगर जी 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 चलें। जी यस जी, चले। मैं एक चीज पॉइंट आउट करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैंने ये 2013-14 में जाके डाटा देखा था। मुझे लगता था कि यूएस बहुत एड करता है इन डिफेंस एंड ह्यूमैनिटेरियन एड, जो यूएस एड उनकी आती है टू इजराइल। समवन टोल्ड मी कि यार तुम पाकिस्तान की जरा चेक करो पिछले 70 साल की। 70 साल में पाकिस्तान को डिफेंस और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उनसे ज्यादा एड की हुई है यूएस ने इजराइल से। चले, मैं अपनी फर्स्ट और लास्ट That's क्लोजिंग because स्टेटमेंट एक second, Furqan bhai, I would like to add something. That's because a lot of people say कि दुनिया के सामने अमेरिका का इजराइल लाडला है, लेकिन पीठ पीछे उसका असली लाडला पाकिस्तान है। पाकिस्तान है। या आई एग्री टू दैट नोशन। जैसे देखो, लाइक हमारे यहाँ लाइक यू देखें यू कैन। फुरकान भाई, जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू करेक्ट यू। 8 डिफरेंट चैनल से इसराइल को फंड होता है in terms of the American state, in terms of technology development, in terms of weaponry development, in terms of economic development. Okay, and you can go further into that. And if you look at the entire spend which officially comes from United States to Israel, that would put the amount of money which they've spent within Pakistan to shame. That is just नो 10%. ना आप जरा कैलकुलेट करें। आप जब कंपेयर कर रहे हैं दो पेमेंट्स को, तो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इज वन पेमेंट फॉर टू पाकिस्तान विच इज कमिंग थ्रू वन चैनल, राइट। पाकिस्तान को ना वॉरफेयर की टेक की डेवलपमेंट के पैसे मिलते हैं जो इसराइल को डिफेंस का अलग। मैंने रेवेन्यू। मैंने दो चीजें की है शाह। लाइक वन इज द डिफेंस and the other is the humanitarian grounds, which Furkan bhai, comes you through the also have to channel remember of कि USA. per मैं capita आपको ये कह रहा हूँ कि Yeah, इन guys, चले आप guys, दो guys, चैनल्स seriously, लगा these लें, were the अगर आप last फिगर्स। statements. We've already Yeah, yeah, crossed that's across the fine. time It's limit. okay. लेकिन अगर आप incorrect fact जो है ना, I'm not saying you're doing that like presenting it incorrectly, लेकिन this is something जिसको आपको holistically देखना पड़ेगा। In terms of education एक separate channel है। When you look at entirety, Shaji, it United comes States under has USA. got एक एजुकेशन वाला भी according यूएसएड के to अंडर आता है। according to the actual Congress of United States Institute of Peace के accordingly, Israel is single-handedly the biggest beneficiary of the American state since the Second World War, combined. एग्जैक्टली। अच्छा और Combined. ठीक है। 40 बिलियन and you को also Okay, have to guys, remember moving आप on, ठीक कह रहे moving होंगे on, ना moving on, moving on, moving on, moving on. Anyone else want to give this last Shaji, statement? we'll look at the stats. We'll look at the stats.
यार जी फुरकान भाई Yeah, we'll look at the facts. लेकिन एक आखिरी मेरा मेरा ये आखिरी statement भी होगा in that same way यहाँ पे with Hamas and how the money is being stopped और जहाँ तक बात आती है कि क्या सारे Palestinians Hamas के supporters हैं and in previous conversations a lot of people have basically made that statement कि इसका कुछ है नहीं लेकिन इसका यूएन की ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक डॉक्यूमेंट है विच आई रिसेंटली केम अक्रॉस व्हाइल लुकिंग फॉर थिंग्स सिर्फ जरा वो एक सेकंड के लिए लगाना अच्छा आई मैं अपना फॉरगेट क्लोजिंग स्टेटमेट दे दूं अपना दैट इज आल्सो जस्ट होल्ड ऑन पुट दैट ऑन और फिर उसके बाद आप अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट देना ये क्लोजिंग स्टेटमेंट जी कौन से आई वाली थिंक दैट चीज इज यार बताइए आप शाह जी ढूंढते हो इतनी देर में मैं एक बार स्टेटमेंट देता हूँ एंड लेट्स हाँ जी रैप इट बोलो अप इन चले आप बोल नेक्स्ट 2 मिनट्स। तो देखें पहली बात तो ये है कि यू आल्सो हैव टू कैलकुलेट कि जो इसराइल है और अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में काउंट कर रहे हो बट पाकिस्तान हैज अ 30 टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट ऑफ इसराइल, तो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट आल्सो 30 एंड यू हैव टाइम्स टू द आल्सो लुक होलिस्टिकली के वो कॉन्फ्लिक्ट किस बेस के ऊपर था और क्या था और उसके अंदर फायदे और नुकसान क्या थे बट एनीवेज दैट्स अ वेरी एंड इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन एंड वी कैन Shaji, एंड it's द his last statement. या Let him give his नहीं statement. You हम don't have वेट to करें ना answer कि right now. सिर्फ वो डॉक्यूमेंट लगा दे वो जिस देखेगा, पे उसे दो Yeah, तीन मिनट लगेगी यार, लेट हिम फाइंड इट। बीच के एंड द अंदर हम बात तो फाइनल करेंगे पॉइंट ना दैट जब आई तक वांट वो टू इट मेक इज इज अप इट इज अप it's not opening on my screen at least. And the final statement I want to make is when the state of India supports the Palestinian cause, it's not because it's somehow like beneficial to our geopolitics. Okay, read it out, so I'll complete my statement. okay, more than 200 Palestinians and nearly 30 Israelis have been killed so far this year in demonstrations, clashes, military operations. ये अगस्त 2023 का so this is in front of you. The Extremist एक reason one why page जो है I'm जी presenting this holding document और ये इसका लिंक report हम डिस्क्रिप्शन के अंदर भी देंगे यार can you stay up can you like move up इसके ऊपर all the time Hamas basically अभी खाली 3 महीने पहले was the last demonstration which took place in Gaza Strip where thousands of people gathered according to the UN's own report right, against Hamas. And what Hamas did to those protesters, they were abducted. फिर यहाँ पे 2005 का इसी चीज का डॉक्यूमेंटेशन है I wish if you would have made this share screen experience a bit more relevant by actually showing those things so we could go through that quickly. ठीक है गाजा के सीज फायर के होल्डिंग वाले सेक्शन के अंदर अगर आप जाएं तो अगेन यू कैन विज थ्रू दैट सो we're going to share the description अभी हम डिटेल में नहीं जा सकते अगले इवेंट के अंदर we're going to cross section that as well the fact is it seems like Hamas is not even supported and there have been regular uh, demonstrations against Hamas by the Palestinian people who have been oppressed twofolds one by the Israeli apartheid state, and on top of that, by those people who have come into their society. Do not let them protest either. Also, abduct their children, also, abduct and torture their elderly and their women, and they are none other than Hamas. And I don't think many people or many media organizations are taking this into account when there is detailed information in regards to the oppression carried out by Hamas on the Palestinian people. And I think that in itself is huge amount of hypocrisy के अटैक हमास ने किया है और इसराइल अपने आप को डिफेंड गाजा स्ट्रिप के अंदर हमास से नहीं पैलेस्टीनियन से बदला दे रहा है and the Western countries in itself, when they know very, very clearly that Hamas is a terrorist organization and not supported by majority of Palestinians, and they've been suffering at the hands of Hamas and their dictatorship to an extent, they are still conveniently forgetting that fact.
So this is a very important piece of information, and I think everyone should read this document and gather information in regards to oppression carried out by Hamas on the Palestinian people. And then I would like people to think that is this attack or this self-defense, so-called self-defense on behalf on or behest of Israel, sponsored and fueled by the Americans, is even justified. Thank you very much. That's all what I wanted to say. Thank you. Sid, if you can remove the screen so that we have Medusa. Medusa, if you have any final comments? No, not today. Is there Okay. anyone left? Yeah, I Okay, think I'll take we 10 seconds to complete Mhm. my point. Just 10 seconds. The point is the principal position of India to support Palestine is not because it's somehow like geopolitically beneficial to it. It's a principal position. As a post-colonial country, India supports the elimination of any kind of oppression of a colonizer state. That's the same reason why when Modi went to Ramallah, the president of the state of Palestine awarded him with the highest honor award of Palestine, and Modi very gracefully accepted it because it's India's principled position, and that's my closing statement. Thank you. Okay, thank you. Andolan, do you have a final statement? Just a few seconds. Agar wo share, No, please. I've just updated one article over here. Maybe one can go through the same in the chat section. I put in an article. So there is a principal shift in position. That's what I'm suggesting, at least from the these three, four countries which I named. And the shift is gonna be, if their demographies support this shift, it's gonna be more tilting towards Israel or against Palestine as we move forward. Okay, thank you very much. And I think Shah has given his closing statements. Said, said any one-liners? Also, the document and Yeah, Dolan shared, we're going to share in the description, और ये दोनों documents और इन दोनों aspects पे कल हम detail के अंदर बात करेंगे. definitely, definitely. Said one-liner. Sure. My closing statements, yeah, my closing statements would be कि आप सबकी बातें बड़े गौर से सुन के I think it has majority of it has to do with the war machine. जिस वक्त अमेरिका में गुर्बत छाती है तो दुनिया में जंग होती है और अमेरिका में गुर्बत छाई भी है और दुनिया में जंग हो रही है. Wow, that's a With huge that, statement, but I think the screen interesting one as break. well. Yeah, yeah. Okay, Thank guys, you. we're done with statements now. Whoever is listening, subscribe and like so that you get to hear more debates from us. And we're going to end this sorry. I mean, stream. I'm going to end this stream. Okay, bye bye.